a very interesting topic that what needs to be done after finals, and this is perfectly the right time when people should start thinking about what needs to be done after finals. Many times I see that people do take they obviously take time to think about it, and they first focus on like let me become CA and then I will decide. But believe me, like you have put in so much of effort in last 5 years, 5-6 years maybe, and this is the final lag. Ultimately, you may be looking out for a job, maybe looking out for practice, maybe something of your own. Whatever you are basically planning, this final month or maybe 2 months. This will be the decisive month. आप इस 2 months में जितने efforts put in करोगे, आपको वो lifelong help करेंगे. This is for sure. I can tell you, not theoretically, but practically, like as Jinesh has mentioned, like I'm into after my qualification, I did job for almost 10 years across multiple industries. So the chartered accountancy is like associated with me for last, I would say, 20 years. 2003 में मैं CA की तैयारी कर रहा था. 2007 में मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था, और उसके बाद 2008 से लेकर 2017 तक I was doing job because I had this qualification. And post that, I'm doing trainings that is also for chartered accountants. So this is, I'm closely working with a lot of CAs. I worked as a CA also. There are a lot of people whom I interviewed during when I was in job. And obviously, like in these trainings, I have seen people from multiple backgrounds. Those who have different kind of articleships, those who have different number of attempts, those who have varied interest, those who have trying to get into a different kind of profiles. So I've dealt with lots of people, and basically just wanted to share this particular experience with all of you, and whatever queries that you have in your mind. So that we'll be discussing it today. Right. So try to make it interactive. And wherever you have any doubts, yes, you can certainly ask on the chat, or you can certainly, I believe there is an option to unmute yourself also. Right. So let's start what after CA final. So people used to tell us a lot of time that life will become very easy once you will clear CA foundation. ऐसा मुझे भी काफी बार कहा गया था कि जब आप हम लोगों के टाइम पे इट वाज PE1, सो एक बार PE1 क्लियर कर लो, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. उसके बाद सेम पॉइंट बोला गया जब हम लोगों ने इंटरमीडिएट क्लियर किया, लाइफ वुड बी वेरी इजी बिकॉज इट वुड बी सेम थिंग, इट विल दिस विल हैपन, राइट. एक बार आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाए, इंटरमीडिएट हो जाए, देन इट वुड बी ओनली फाइनल्स. उसके बाद लाइफ वुड बी वेरी इजी. And same now everybody must be telling you कि बस अगले महीने रिजल्ट आएगा, and then the life would be super easy, right? So this is a common thing which happens. Okay, and then again, once you will qualify, then people will tell you that okay, just get your first job or get your practice. Okay, so you will get what exactly you want, and then it goes on, right? So it's the typical circle of life will go on. But of course, there are important milestones, and becoming a CA is certainly very important milestone. If I can recall my experience, yes, 2007 when I got qualified, it was a major milestone. Post that, yes, obviously what you want to get respect, you want to get money, and basically you want to do things of your choice. So this basically qualification helps you a lot. So 2007, before 2007, yes, life was difficult. You have pressure of exams, you have pressure of articleship, a lot of things are there. So this I consider, yes, it's an important, okay. And
at this juncture, if we can decide what are the questions, what are the general queries, okay, and there are some important decisions that if you will able to take rightly, then it will save some years of your life. एक right decision आपके कुछ साल definitely बचा सकता है, और अच्छी बात है if it can save few years, right, it will definitely help a lot. Right, so these are the certain questions like you'll be discussing today, that various profiles आप देखोगे कि आज जैसा कि आजकल आप सुनते भी हो, particularly like इन्वेस्टमेंट बैंक है, ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, बिग 4 की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, बैंकिंग कंपनीज आती हैं, ओके, मर्जर एक्विजिशंस, तो देयर आर वेरियस प्रोफाइल्स दीस डेज. इट्स गुड कि काफी डिस्कशन होने लगा है और काफी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी, बट स्टिल लाइक हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है इन प्रोफाइल्स के लिए, और उसमें एग्जैक्टली करना क्या होता है. Secondly, we will be talking about the preparations part. Preparations को लेकर जो companies आपसे basically selection rounds conduct करती हैं, उसके बारे में we will do a quick discussion, or maybe we'll discuss that in details. Person interviews, group discussions, right? These are certain things which needs to be understood very properly. क्योंकि देखो ये एक difference है एग्जाम्स और अपॉर्चुनिटीज में, दैट देयर इज ओनली वन अटेम्प्ट इन दिस वन. कल को अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज से कॉल आएगा तो वो एक ही बार कॉल आएगा, राइट? सो वी कांट मेक मिस्टेक्स हियर, सो वी हैव टू गो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड. देयर इज नो नेक्स्ट अटेम्प्ट इन इंटरव्यूज, राइट? सो वो एक पॉइंट है. थर्ड इज ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू करियर, ओके, एंड जनरल क्वेरीज भी काफी होती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है सो विल वी गेट शॉर्टलिस्टिंग और नॉट, ओके, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस होते हैं. सो आई हैव सीन मल्टीपल, एज आई टोल्ड यू, लाइक हम लोगों ने अभी लास्ट जुलाई में जो हम लोगों की बैच क्लियर हुई थी, उसमें भी सीन वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक होल्डर्स टू पीपल हु हैव गॉट 9 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट्स, राइट? सो ये पूरा जो एक इस फेयर में देखा है कि इंडस्ट्री में कहाँ डिमांड आ रही है, कहाँ पर आप लोगों के प्लेसमेंट्स के चांसेस ज्यादा है, ओके, एंड देन क्या गलतियां कैंडिडेट्स जनरली ज्यादा करते हैं और क्या प्रिपरेशंस उनको करनी चाहिए एट द राइट टाइम. सो विल divided this session into these 3 parts, right? First we'll understand the opportunities and the industry. Then we'll talk about the clarity and the campus preparations, right? So because a lot of people do ask me that what is this CAMPREP, right? CAMPREP is basically, you can understand, it's an abbreviated version of campus preparations only. So because ours is a very, very specific focus on campus preparations. So we do help people, especially from the finance backgrounds, chartered accountants, MBA finance, and so mostly, and that's how this name emerged. So trend of candidates, right? ये एक important है जो आप लोगों को समझना है. Starting from November 15, जितना डेटा पॉसिबल था, राइट, Jan 21 तक का हम लोगों के पास अवेलेबल हुआ. This is a published data available everywhere in the public domain. So you will find that the people who are registered here, okay, they are somewhere around 9,000. So अगर broadly बात करें तो हर attempt में करीब 15,000 स्टूडेंट्स सीए बनते हैं, राइट, अराउंड 15,000 समथिंग. एंड उन 15,000 में से आप मान लो कि अराउंड 8-9,000 रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर कैंपस. बचे स्टूडेंट्स मान सकते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना पसंद करते होंगे या फिर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज पसंद करते हैं, राइट? एंड दोज हु ऑफर्ड एंड एक्सेप्टेड द जॉब्स, लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे, so it is somewhere around 30%, right? So 30% अगर आप मानते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि बेसिकली कंपटीशन हाई रहती है, 30-35%.
सो इस स्लाइड में दो बातें हैं. पहली बात तो ये है कि द कंपटीशन वुड बी देयर. सेकंड पॉइंट इज दैट the off campus you should also try to think about. If in case you do not get in campus, yes, शुरू से ये efforts आपको लगाने चाहिए because you can see the numbers, right? So these are the two messages from this slide. Trend अगर आप देखोगे packages के, yes, trend is definitely quite promising. As a CA बहुत अच्छी बात है कि पैकेज बढ़ता चला जा रहा है. ओके, इंडस्ट्री में सीएस की डिमांड बढ़ती जा रही है. there are a number of companies who are participating, who are asking CS. So basically the demand is certainly increasing a lot. Yes. So okay, let me read the comments also. शार्क टैंक, ओके, शार्क टैंक काफी चल रहा है अभी, राइट? बहुत न्यूज में है. Should we start right away from result day or after campus only, right? Yes, this is a good question. Immediately start करना चाहिए. Off campus immediately start कर दो. See, like the moment you become chartered accountant, right? You should immediately start. Okay. So it's good to know that you people are enjoying the session. All right. So basically, what we were trying that what we are discussing here is of course, the packages are improving and the demand is going very, very high. Should we apply for pre-result drive as well? Pre-results drives. देखो, apply आपको जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर देना चाहिए. ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती, should not wait too much. Second point ये है कि of course you once you have the opportunities in your hand, you will be the person who will decide where should I want to go. ठीक है, so no harm in definitely applying everywhere. Number of multiple attempt questions in interview, yes, इसके ऊपर बात करेंगे. What kind of profile are mostly offered in campus, yes, इसके ऊपर भी बात करेंगे. Is 30% recruitment is good or whether company is not able to find right talent. बेसिकली देखो, डिमांड ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है. अगर आप नंबर्स के टर्म्स में बात करोगे तो नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट? लेकिन इतनी ऐसा भी नहीं है कि लाइक जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए कंपनीज कैंपस के अंदर आ रही है. ऑब्वियसली उनकी भी एक कैपेसिटी है, बट ऐसा नहीं है. लाइक हम लोगों ने अभी जो बैच करी थी उस बैच में मोर देन जितने स्टूडेंट्स थे उससे डबल ऑफर्स आए थे. तो ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज है. तो प्लेसमेंट हर एक का हुआ है, मतलब आप बोल सकते हो 200-250% सिलेक्शन हुआ है अभी. ओके, सो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के, और आपको सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यू विल गेट द आंसर. ओके, बहुत सारे तो उसके अंदर बहुत ही क्लियरली आपको समझ आ जाएंगे कैसे आंसर करना है. ठीक है, सो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. दूसरा हम लोग बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर है. वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज, लाइक दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स. ओके, आप इन 5 वर्टिकल्स में से किसी में एक में प्लेस होंगे. इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडस्ट्री, बैंक्स, फर्म्स या आईटी इंडस्ट्री. क्विकली इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काफी टॉक्ड अबाउट वर्ड है. बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अगर आप देखोगे वो बात करते हैं कि लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना है, आईबी में जाना है. एमबीए फाइनेंस भी के साथ भी जब मैं डील करता हूँ उनका भी यही होता है कि आईबी इज समथिंग एक्साइटिंग, राइट? सो ऑफ कोर्स इट इज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट. ठीक है, किसी टेलीकॉम कंपनी का क्या प्रोडक्ट होता है? सिम कार्ड्स. ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का क्या प्रोडक्ट होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का प्रोडक्ट होता है मनी, राइट? मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना है और मनी की अगर रिक्वायरमेंट है
तो वो कहाँ से लेकर आनी है। अगर ब्रॉडली अगर आप बात करोगे तो यही बात है बस, राइट। मर्जर एक्विजिशन क्या है, यही है बेसिकली। कंपनी के पास एक्सेस पैसा है, रिलायंस के पास एक्सेस पैसा है, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, एक्विजिशन से स्टार्ट कर दी। आपने देखा करीब 8 से 10 स्टार्टअप्स में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, राइट। सो मर्जर एक्विजिशन, आइडिया वोडाफोन डील, यस इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। वैल्यूएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, आप देखते हो कि लाइक लास्ट ईयर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के आईपीओज आए, ओके, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यूएशंस। आपने देखो पेटीएम का वैल्यूएशन, जब वैल्यूएशन आया था तब इट वाज ओपनिंग प्राइस कितनी थी, पेटीएम की ओपनिंग प्राइस कितनी थी, 2160, राइट। अभी क्या प्राइस हो गई उसकी, 50%, 950 हो गई है, राइट, 50% कम हो गई। सो बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग, आईपीओज, ये सब काम भी किस कैटेगरी में आएगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। या ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस आप लोगों ने थोड़ा एक्सपीरियंस भी करा होगा, बेसिकली सॉर्ट ऑफ ऑडिट है, ओके, यू हैव टू वेरीफाई। अगर आइडिया और वोडाफोन की जब डील हुई तो उसमें नॉट ओनली फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस बट नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो, कि लाइक आइडिया अगर क्लेम कर रहा है कि हमारे पास 30 करोड़ सब्सक्राइबर है, तो वो वेरीफाई भी करना है, राइट। सो उसके लिए क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होती है। सिमिलरली प्राइवेट इक्विटी, जनरली वो लोग जो फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यही जो आप बात कर रहे हो अभी, राइट, शार्क टैंक, ओके, what are they are in a sort of angel investor or seed investors or प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, ओके, जो भी उनको आप नाम दो, ऑल्दो उनमें डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग माइनर डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन यस दे आर बेसिकली दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, ओके। सो ये जो प्रोफाइल्स है, और डेट सिंडिकेशन, तो ये बेसिकली सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। अब आप लोगों को अगर इसमें इस फील्ड में जाना है, राइट, तो डेफिनेटली 2 चीजें चाहिए। पहली तो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, कंपनी के पास डिमांड होनी चाहिए, और दूसरा आपका स्किल सेट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्किल सेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, और इंडस्ट्री में डिमांड भी होनी चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्री में डिमांड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डिमांड डेफिनेटली इज लिमिटेड। व्हाई इट इज लिमिटेड? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं इनकी टीम साइज बहुत कम होती है। मैंने अपने करियर के स्टार्ट बैंक ऑफ अमेरिका से करी थी। सो वहां पर उनको बेसिकली ट्रेजरीज के लिए दे नीड पर्सन, राइट, एंड आई कुड सी दैट दे हैव वेरी वेरी स्मॉल फ्रंट ऑफिस, वेरी फ्यू पीपल इन मिड ऑफिस। तो जो फ्रंट ऑफिस मिड ऑफिस में, उसमें टीम साइज ही कम है, और उसके बाद देयर इज अ कंपटीशन फ्रॉम सीएफएस एंड एमबीए फाइनेंस। सो इसलिए ये जो मार्केट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और इसलिए आप लोगों को एक बात समझनी है कि we need, if you want to get into investment banking, you need good connects, ठीक है, just to get the opportunity। और good connect का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये तो आप समझते ही हो, आर्टिकलशिप में भी आपने फेस करा होगा। आपको किसी ने रेफर करा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, राइट। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी ऐसा ही है, you will have to give interviews, right? इंटरव्यूज में there will be questions, okay, so क्या skills, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, हाउ डू स्टार्टअप्स गेट वैल्यूड? स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे होता है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफी बार पूछा जाता है। यस, एनी क्विक आंसर्स? हाउ डू दी स्टार्टअप्स आर वैल्यूड? कस्टमर बेस या सेल्स? ओके, गुड। डीसीएफ, डीसीएफ, यस, लवली गुप्ता एंड सूरज, यस, परफेक्ट आंसर, ओके। बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर्स, देखो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है डीसीएफ, राइट, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड टॉपिक। जब टेक्निकल डिस्कशन करते हैं, आप में से जिन लोगों ने फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्टडीज करी होंगी, राइट, सो वहां पर और इसको आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो अभी शॉर्ट में आंसर अगर हम बात करते हैं तो डीसीएफ, राइट, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज।
जो टेक्निक आपने पढ़ी है कि कंपनी के जो फ्री कैश फ्लोज हैं, राइट, उनको हम प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करेंगे और वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दी वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी, राइट। और यही कारण है कि जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट करते हैं। तो आज अगर फ्लिपकार्ट लॉस भी कर रही है, सभी को पता है फ्लिपकार्ट लॉस कर रही है, पिछले 10 सालों से दे आर इनटू लॉसेस, अभी भी उनका लॉस कुछ 2000 करोड़ का है, तो उसका वैल्यूएशन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, राइट। उसका वैल्यूएशन इसलिए पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हम उसको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं, ओके, और प्रोजेक्ट करके फिर डिस्काउंटिंग करते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑल दीज स्टार्टअप्स ऑल्दो दे आर इनटू लॉसेस, लेकिन जब उनका वैल्यूएशन देखते हैं सो वैल्यूएशन इज पॉजिटिव, राइट। सो yes, you have there are some other answers as well, we see, और भी methods होती हैं, but the most common method and most appropriate method, right, that is a DCF method. Like I worked for a company called as Tikona Digital Network, okay, जब मैंने उसको ज्वाइन किया था तो वो 2009 में it was a startup, right. We used to approach a lot of investors, right. So we have seen that complete process of how do valuation happens and all practically in the industry, right. So आप लोगों के कुछ आंसर्स और कुछ रिप्लाईज हैं। So let me take, so this is clear to you, I think, what type of skills. So primary skills are two. One, please read about valuations. जैसे कि एक मेथड की बात करिए जो कि सबसे कॉमन है, which is DCF। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन ये सबसे प्रोमिनेंट मेथड है। कंपेरेबल मेथड्स आती है, ठीक है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए डिविडेंड मॉडल यूज किया जाता है, राइट। देयर आर अदर कंपनीज जिनके लिए पी मॉडल यूज किया जाता है, वो कंपेरेबल मॉडल की तरह ही उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये सब मॉडल्स और होते हैं, इन सबको आपको स्टडी करना है। दूसरा आपको स्टडी करना है कि अभी लेटेस्ट में कौन सी डील्स हुई है, उन डील के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और पब्लिक डोमेन में सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर करीब 10 कंपनीज के मेजर आईपीओ आए थे, तो उनमें से कोई भी 2 कंपनीज पिक कर लो, उसकी वैल्यू इतनी कैसे उन्होंने निकाली थी। सो रिसर्च रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे रिलेटेड, ठीक है। सो ये उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है, दूसरा आपको वैल्यूएशन का आइडिया हो। ये 2 स्किल्स बहुत अच्छे से काम करिएगा, ठीक है। उसके अलावा भी डेफिनेटली चीजें रहती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, बट ये एकदम बेसिक पॉइंट्स है कि 2 पॉइंट्स तो जरूर जरूर पढ़ना, वैल्यूएशन एंड लेटेस्ट डील्स। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको थियोरेटिकली बहुत अच्छा आइडिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सभी लोगों ने पढ़ा है, सो यू हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट, सो डोंट वरी, इजीली यू कैन हैंडल द इंटरव्यूज। सो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आप लोगों के साथ में। ठीक है, ये देन lots of answers are there. What is the general discounting rate considered risk and other factors? देखो, डिस्काउंटिंग रेट इज बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस, आप वैक निकालते हो, यस, सो दैट इज बेसिकली द डिस्काउंटिंग रेट। Okay, we have no experience in such field, so what should be the way to approach and face interviews? देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, ये दोनों स्किल्स के ऊपर काम करो, और फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनते हैं, थोड़ा सा एक्सेल के ऊपर कोशिश करो कैसे बना सकते हो फाइनेंशियल मॉडल्स, राइट। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल के ऊपर, तो मतलब एक्सेल तो इट्स लाइक ब्रेड एंड बटर, हम लोगों का ब्रेड एंड बटर वही है, राइट। एक्सेल पे ही अब आपको काम रहेगा, तो जितना अच्छा सीख सकते हो एक्सेल, डू स्टडी दैट वन। ओके, देन but we can't change practical knowledge about it, what we can't have। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को भी नहीं है अभी, यस, आप सभी लोग फ्रेशर हो, जो भी जाएंगे वो फ्रेशर की तरह ही जाएंगे, ठीक है। सो इस चीज से बिल्कुल हेजिटेट मत होना कि हमको नॉलेज ही नहीं है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, इस चीज का कॉन्फिडेंस रखो प्लीज। 3 साल की आर्टिकलशिप
बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद इतनी टफ एग्जाम निकालो, ठीक है। सो यू जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। एग्जांपल्स भी दूंगा मैं आपको इन सब चीजों के, कि जो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को जो बातें। फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन कोर्स का फायदा डेफिनेटली है, आप अगर करते हो तो इस टाइप के फील्ड्स में तो बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। इक्विटी रिसर्च की प्रोफाइल हो गई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, इन सब प्रोफाइल्स के लिए दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन विल हेल्प यू लॉट। अटेम्प्ट का क्राइटेरिया मैटर करता है क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में? अटेम्प्ट का क्राइटेरिया कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसा मैंने आपको बोला कि जनरली अगर आप कैटेगरीज देखोगे, दो कैटेगरीज रहती है इन्वेस्टमेंट बैंक में। एक होते हैं फॉरेन बैंक्स, जैसे कि लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, उनके कुछ क्लियर प्रोटोकॉल्स थे कि हम इन्हीं कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को लेंगे, ठीक है। फिर एक्सेप्शंस होते थे कि कहीं और से वो ले लेते थे। सो ऐसा हर कंपनी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो टीयर 1 कंपनीज जो है उसमें थोड़ा चैलेंज ज्यादा होता है, क्योंकि वो सब ऑल इंडिया से अलग अलग कॉलेजेस से प्रेफर करते हैं। आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो टीयर 2 फॉर्म से स्टार्ट करो। टीयर 2 फॉर्म्स, इंडियन फॉर्म्स, ओके। पैकेज सर्टेनली यहाँ पे कम मिलेगा आपको, लेकिन आपका, आप जिस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हो आपको एटलीस्ट उस फील्ड में स्टार्ट मिल जाएगी। यस, फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज कैन वी डू सम इंटर्नशिप फॉर 2-3 मंथ्स? इंटर्नशिप देखो अब टाइम नहीं है, मतलब बिलीव मी, 2-3 महीने की इंटर्नशिप, और 3 महीने में इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इसकी बजाय आपको, जैसा मैंने जो सजेस्ट किया है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैल्यूएशन से रिलेटेड, ओके, उन उन चीजों को आप पढ़ भी लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो, यस, अगर मिल जाती है कोई इंटर्नशिप, यस, नथिंग लाइक इट, लेकिन उसको सर्च करना, उसको ज्वाइन करना, उसमें काफी टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है। देन व्हाट अबाउट कंसल्टिंग रोल्स इन कंपनीज लाइक पेन? यस यस, फैंटास्टिक। ये तो देखो, अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, दो ही चीजें डिमांड में है। पहली चीज डिमांड में है सबसे ज्यादा, अगर आप किसी IIM अहमदाबाद के कैंडिडेट से बात करोगे, वो बोलेंगे कि विच प्रोफाइल डू यू प्रेफर द मोस्ट, दे विल से कंसल्टेंसी। और कंसल्टेंसी बेसिकली BCG, मैकेंसी एंड बेन, ये 3 कंपनी है, राइट, जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ये दो बहुत डिजायर्ड फील्ड्स हैं, बट हमको कंपटीशन भी समझनी है एट द सेम टाइम, राइट। आपको ये भी समझना है कि इंडस्ट्री किसको किस चीज के लिए रिकॉग्नाइज कर रही है, और कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं और वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में हमारे लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक हम लोग कब से काफी टाइम से ट्रेनिंग्स में हैं, मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा एकेडमिकली कर लेते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी हाई रहती है, और होना भी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन समटाइम्स दोज एक्सपेक्टेशंस आर इतनी हाई हो जाती है कि वो बहुत रेयर चीजों के लिए होती है, जो जनरली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, राइट। तो आप लोग, और उसके कारण डेफिनेटली डिले हो जाते हैं उनके जॉब जॉब ज्वाइनिंग। सो बहुत ज्यादा डिले भी नहीं होना चाहिए। आप सपोज फाइनल क्लियर किया आपने, विद इन 2-3 मंथ्स यू शुड गेट अ जॉब। अब उसके फिर गैप को जस्टिफाई करने में दिक्कत आती है, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और इसी को आप कंसल्टिंग के एंगल से भी देख सकते हो कि यहाँ पर टफ कंपटीशन, एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू दीस फील्ड्स, टारगेट टीयर 2 फर्म्स, ठीक है। एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल आनंद राठी एंड कंपनी। There are a lot of CA firms which are into IPOs. Okay, ऐसी भी काफी फर्म्स हैं जो कि IPOs हैंडल करती है, मिड साइज IPOs हैंडल करती है। तो ऐसी जगहों से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन देखो, बस एक ही बात है, क्योंकि जब सवाल CTC का आ जाता है, ठीक है, तो फिर बाकी सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि लाइक एवरेज पैकेज तो 9 लाख का है, और अगर मुझे टीयर 2 में 9 से कम मिलेगा तो फिर, तो ये अब आपको कॉल लेना रहेगा कि आपको प्रोफाइल ज्यादा फेवरेट है, या पैकेज के लिए, पैकेज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
ठीक है, सो इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं अभी. So people interested in valuation and DDs as well as known mid-sized firm Bangalore sent me your CV. Okay, this is good one. Mr. Ramnath is there. Okay, so he is helping you out. From where we can do any certification on valuation? बहुत सारे हैं देखो ऐसे जहाँ से आप कर सकते हो. A lot of people like हम लोग भी financial modeling valuations हम लोग भी करवाते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो उसके अंदर. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. डू सीएस हैव एनी करियर इन डेटा एनालिटिक्स? यस डेफिनेटली, डेटा एनालिसिस के लिए है, काफी स्कोप है और बढ़ता जा रहा है. मैंने जब आइडिया ज्वाइन किया था तो आइडिया सेल्यूलर मैं बेसिकली हम लोग का काम ही ये था, डेटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, राइट. सो यस यू हैव लॉट ऑफ स्कोप इन दैट. और उसके लिए एक्सेल के ऊपर बहुत अच्छी कमांड बनाई है सभी लोग. यस, अभी लाइक हम लोगों का एक गेट टुगेदर हुआ था, जो बैच अभी प्लेस हो गई थी जुलाई 21 वाली बैच. सबसे ज्यादा डिस्कशन यही हुआ था किसको किस पे काम करना पड़ रहा है. यही निकल कर आया कि सबको एक्सेल की रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट. सो एक्सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. फ्रॉम वेयर कैन वी डू फाइनेंशियल मॉडलिंग? मैंने बताया आपको ऑलरेडी. इन एडिशनल क्वालिफिकेशन विद सीए, एनी फॉरेन क्वालिफिकेशन? देखो ये एक क्वेश्चन है जो इसको आप अच्छे से समझ लो. ये भी बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन होता है कि एडिशनल क्वालिफिकेशन में जाना है या नहीं जाना. सी, दी फर्स्ट व्हाट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर. इंडस्ट्री की डिमांड क्या है? इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि आप की एंट्री हो गई एज अ फ्रेशर. सीए इज अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स. मैंने मलेशिया में 2 साल काम किया है, राइट. मतलब आई कैन टेल यू, it's not only in India, abroad also there is a huge requirement. हम लोग के CFO himself that time was a chartered accountant from India. तो recognition इतना है, तो इसलिए additional qualification at this moment I don't think so. It is required. लेकिन what you can do after some time, yes, when you feel कि अब मुझे requirement लग रही है, इस area में मुझे जाना है. जैसे कि somebody wants to go into investment banking, तो better है कर लो आप फाइनेंशियल मॉडल. किसी को अपना करियर रिपोर्टिंग में बनाना है, IFRS सॉर्ट ऑफ, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, थोड़ा टाइम बाद IFRS का कोर्स कर लो. तो जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, राइट, वो करना ज्यादा बेटर है. और जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो, राइट, उस कंट्री का फिर आप अकॉर्डिंगली, बहुत सारे कंट्रीज के साथ टाई अप्स है, तो उसका CPA कर लो. सपोज somebody wants to go to कनाडा में भी बताते हैं कि बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या और कहीं जाना है UK. सो बेटर वहां उनका जो पर्टिकुलर CPA है वो CPA आप कर लो. सो डोंट डू एनी क्वालिफिकेशन just for the sake of doing it. Have your purpose properly set right. Like मैंने 2007 के बाद कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं किया. With CA only I become CFO for a company. केवल CA के बेसिस पे मेरा करियर अच्छा खासा चला और मुझे मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है CFO की वो भी मिल गई थी. बट जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट आई डिड द एडिशनल प्रोग्राम विद IIM इंदौर. वो मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने 10 साल बाद करा वो मैंने एडिशनल जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, ठीक है. सो नीड इज नॉट देयर. सो बेसिकली इंडस्ट्री नीड पीपल हु हैव राइट एक्सपीरियंस, ठीक है. इसलिए फोकस करो सही एक्सपीरियंस लेने पर, और जो जो चीजें उसके साथ रिक्वायर्ड है वो एडिशनल डिग्री डिप्लोमा लेते जाइए. बट डू नॉट टेक ब्रेक फ्रॉम योर एजुकेशन, फ्रॉम योर जॉब. अभी जैसे कि लाइक कई सारे स्टूडेंट CA कंप्लीट होंगे, कई सोचते हैं CFA करना है, तो CFA करना है तो पढ़ाई करनी है, ब्रेक ले लेते हैं. प्लीज प्लीज डोंट टेक ब्रेक. जो भी करना है अलॉन्ग विद जॉब, ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम पैकेज कैन बी यू कैन एक्सपेक्ट? मिनिमम पैकेज जैसे कि अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो मिनिमम इज 5 और 5.5 इन लार्ज कैंपस, और आई थिंक if I'm not wrong, maybe 4.5 is for small, right. ये कैंपस की बात है.
ऑफ कैंपस अगर आप जाते हो तो फिर अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस। ठीक है, इफ वी गो इनटू मर्जर एंड एक्विजिशन, then we won't be able to move out of from that department if we want to change, as our specialization will be restricted. Yes, ये तो है ही। आप एक जिस भी फील्ड में उतर गए, एक साल बाद आप उसी फील्ड के लिए हो जाओगे। ठीक है, और चेंज करना भी नहीं चाहिए। चेंज करोगे तो जो प्रीमियम आपको मिल रही है वो प्रीमियम नहीं मिलेगी। सपोज कल को आपने इंटर्न ऑडिट ज्वाइन करा, ठीक है, 2 साल इंटर्न ऑडिट में स्पेंड करें, तो थर्ड ईयर आपको उसकी प्रीमियम मिलेगी क्योंकि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन तीसरे साल आपने सोचा कि नहीं, लेट मी गो टू टैक्सेशन, फिर आप फ्रेशर की तरह ट्रीट हो जाओगे। ठीक है, सो कोशिश ये करो कि एक ही फील्ड सिलेक्ट करो। और इसीलिए मतलब दैट्स व्हाई ये जो प्री डिस्कशन है, प्री डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाउ टू गो फॉर डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स देखो, ऐसे अलग से प्रोफाइल कुछ कंपनीज में आने लगी है, लेकिन ज्यादा करके जो आप कॉर्पोरेट्स देखते हो, कॉर्पोरेट्स बिग 4, यहाँ पे आपको आपके फील्ड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट आएगी और उसमें फिर डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, आप सपोज फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो कंपनी के लिए, उन्होंने बोला कि लेट्स यूज द डेटा एनालिटिक्स टू कंप्यूट व्हाट इज द पर कस्टमर कॉस्ट और पर कस्टमर रेवेन्यू, राइट। तो वहां पर आपको ये एडिशनली यूज में आ सकता है। डीसा और अदर स्पेसिफिक स्किल्स, कोडिंग फॉर कोडिंग एटसेट्रा फॉर एंट्री इनटू डेटा। मतलब कोडिंग सीख लो तो अच्छी बात है, मतलब ऑल्दो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी बात है कोडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, लेकिन क्या करें, अभी तो चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही है दैट देयर लुक्स लाइक कि हम लोगों को भी थोड़ा आना चाहिए ऑटोमाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि डेटा इतना बढ़ता जा रहा है। कई बार एक्सेल का जो, एक्सेल में नंबर ऑफ रोज जो होती है, कितनी होती है नंबर ऑफ रोज एक्सेल के अंदर? पहले कुछ 60,000 होती थी, राइट। उस 60,000 को बढ़ा के अभी आई थिंक 1 लाख कर दिए शायद। नहीं नहीं, 16 नहीं, ज्यादा है, मोर देन 1 लाख है आई बिलीव सो। वो भी कम पड़ रहा है, इतना डेटा रहता है और उसका इतना एनालिसिस होता है, तो इसलिए ये सब जो 10 lakhs वो भी कम पड़ जाता है। ठीक है, इतना डेटा है अवेलेबल, तो उसके लिए फिर ये सब थोड़ी बहुत कोडिंग, वीबी, विजुअल बेसिक्स, ये सीखो तो अच्छी बात है। बट यस, ऑब्वियसली टू स्टार्ट विद एक्सेल। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर एफपी एंड एज अ फ्रेशर, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रोल्स इन स्टॉक मार्केट फॉर सीए। स्टॉक मार्केट में बेसिकली आपको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, अगर आज मैं क्या बोलता हूँ कि रिलायंस का जो शेयर है दैट विल बिकम 3,000 रुपीज, ठीक है, सो उसके पीछे जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग क्या है, ओके ये काम है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का। या फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेट्स डू वन थिंग, बाय शेयर ऑफ टीसीएस, तो ये काम बेसिकली इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का है कि वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन दिस। ठीक है, सो ये बेसिकली उसमें दो प्रोफाइल्स होती है, एक बाय साइड की होती है, एक सेल साइड की होती है, राइट। तो जिस टाइप का रिकमेंडेशन आप देते हो उसके अकॉर्डिंगली इट गेट्स डिसाइडेड। सो अगेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूएशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो ये प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल है। उसके बाद कुछ लोग ट्रेडर्स बन जाते हैं। तो ट्रेडर्स में क्या होता है, ट्रेडर्स के अंदर आपको डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ओके, एफ एंड ओ में करना रहता है डीलिंग। उसके लिए कोशिश करो कि अगर वैसा कुछ करना है तो फिर एक ट्रेडिंग का कोर्स कर लो, जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज रहेगा। कनाडा में करना पड़ेगा कैनेडियन सीपी, यस यू आर राइट। Is it good to start with audit when I want to get into finance but not getting an opportunity in finance? Will I be able to switch into finance later? लेटर की चांसेस बहुत ब्लीक होते हैं, मतलब अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं अब तक डील कर चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को, आई कैन टेल यू दैट यस, इट्स नॉट इजी। एक बार एक फील्ड में आ जाते हैं, उस फील्ड से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप है,
बट कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। लाइक मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था पोस्ट क्वालिफिकेशन विद आइडिया, आइडिया और तिकोना, दोनों ब्रॉडबैंड, समवेयर इनटू टेलीकॉम सेक्टर। सो जो अपॉर्चुनिटीज मुझे आ रही थी दैट दे वर कमिंग फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर ओनली। तो इंडस्ट्री फिर क्या है कि 2-3 साल बाद आपको उसी तरह से देखती है जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, इसलिए चेंज करने का मेरे हिसाब से मत रखो प्लान। एक शुरू से ही एक थोड़ा सा माइंडसेट प्रॉपर बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली जाओ। मतलब बार बार फील्ड चेंज करना डिफिकल्ट है। ठीक है, कंपनी स्विच करना एक अलग बात है, उसमें तो आप उसी फील्ड में एक्सपर्ट होते जा रहे हो, लेकिन पूरा फील्ड ही बदल लेना दैट इज थोड़ा। इनडायरेक्ट टैक्स इन ईवाई और फाइनेंशियल एनालिसिस एट बार्कलेज, दोनों में से कौन सा बेटर है? ये एक टफ क्वेश्चन है एक्चुअली, विच वन इज बेटर, ये थोड़ा सा मेरे लिए बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बिग फोर ज्वाइन करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट ज्वाइन कर लें, इज इट अ गुड रोल टू ज्वाइन? ओके, देखो बात ये है कि उस फील्ड में इससे स्कोप काफी है, राइट? आप दो किसी भी दो फील्ड को आप कंपेयर करोगे, वो दोनों के अलग अलग पाथ मिलेंगे आपको। ठीक है, आप एक तरफ यू विल फाइंड स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बिग फोर, उसके उनके पार्टनर को देखोगे 15 साल बाद क्या अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल। दूसरी तरफ सपोज किसी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करा विप्रो का, ओके, कुछ साल बाद वो फाइनेंशियल कंट्रोलर बन गए, वो अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो इसी तरह से ये भी है कि लाइक इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप ज्वाइन करते हो बिग फोर में, यस, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन यू विल definitely become expert of GST. You may be director or partner maybe 15 years down the line. Or financial analytics at Barclays, yes, this seems to be good. इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो दोनों में देखो कुछ ना कुछ प्लस माइनस है इसको। और जिनके ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनके लिए यस यू हैव द ऑप्शन, यस जस्ट कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज डू आस्क दोस क्वेश्चंस। ठीक है, जो मतलब जिनके बड़े बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, बिकॉज वो अभी हम लोग इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली आई कैन डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस। हाउ यू कैन बी सो श्योर ऑफ व्हाट इज टू बी डन, यस, ये बड़ा सही क्वेश्चन है। इतना ये कैसे डिसाइड करें कि करना क्या है? यस, ये तो देखो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो अपने आप को ढूंढना पड़ेगा, और लोग अपने आप को ढूंढते ढूंढते फिर पहाड़ों में भी चले जाते हैं कई बार, राइट? लेकिन जो अवेलेबल है, ठीक है, उसमें से बेस्ट निकालना है। तो अभी तो हमने जस्ट एक काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, कुछ हम ऑलरेडी स्लाइड्स में आगे कवर करेंगे। यस, व्हिच वन इज द बेटर ऑप्शन, फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स और आईबी कोर्स फ्रॉम? हाँ, ये भी देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्लीज इफ यू कैन send me, like you can please connect me on LinkedIn, okay, and I will share my number also। ठीक है, सो डायरेक्टली बात करें, क्योंकि हो सकता है उसमें हमको कुछ डिस्कशन भी करना पड़े, आपकी कैसी आर्टिकलशिप रही है, क्या अवेलेबल है, ओके, इस टाइप से वी नीड टू डू सम डिस्कशंस आल्सो। इंटरनल ऑडिट से बिजनेस कंसल्टिंग में मूव करना अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करता है, अभी तक मैंने नहीं देखे। ऑल्दो यू आर राइट, जब आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो उस बिजनेस के आपके पास काफी अच्छा नॉलेज हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ, एंड जो हम लोगों का कोर एजेंडा है, राइट, थोड़ा उसके ऊपर जाते हैं, नहीं तो यस, काफी चीजें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, मतलब आगे की स्लाइड्स उसी पर्पस के लिए है। ठीक है, सो हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे, जो आप लोगों के क्वेश्चंस है दे आर देयर इन द चैट बॉक्स। अब देखो सेकंड, पहली बात तो आप लोग ये समझ लो कि जिनके क्वेश्चन है कि किस फील्ड में जाना है, अगर जॉब आपने डिसाइड किया हुआ है, आपको ये 5 में से किसी एक में जाना है, यही अवेलेबल है। ठीक है,
और यहाँ पे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें कुछ पॉइंट्स ही लिखे हैं मैंने। स्टॉक मार्केट भी आप बोल सकते हो कि इसी, ऑल्दो मैंने उसको सेपरेटली नहीं लिखा है, बट स्टॉक मार्केट भी आप मान लीजिए कि इसी के अंदर है। नाउ सेकंड इज कॉर्पोरेट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पहले हमने इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करी, वहां बहुत सारे बहुत कंपटीशन है, लेकिन कॉर्पोरेट्स में अगर आप बात करते हो, सो ये वो एरिया है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मोनोपोली है। आप किसी भी कंपनी में चले जाओ और वहां पर देखो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन लोग हैं, रेवेन्यू अकाउंटिंग में कौन है, रेवेन्यू एश्योरेंस में कौन है, फाइनलाइजेशन में कौन है, कंसोलिडेशन में कौन है। आप देखोगे कि यू 90% टाइम आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही मिलेंगे। सो देयर इज सच काइंड ऑफ मोनोपोली इन कॉर्पोरेट्स, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ह्यूज डिमांड। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले आपको एक जॉब ऑफर होना चाहिए हाथ में, और उसके बाद तैयारी करनी है आपको, राइट। सो इंडस्ट्री में डिमांड भी होनी चाहिए, जैसे आईबी की हमने बात करी थी, तो सेम वे यहाँ पे डिमांड ही डिमांड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी है। द मोमेंट यू विल बिकम सीए, यू विल अपलोड योर प्रोफाइल्स एट मल्टीपल प्लेसेस, आपको वैसे ही कॉर्पोरेट्स के कॉल्स आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर डिमांड है सीएस की, ठीक है, और मोनोपोली है, एक तरह से बोल सकते हो इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर। सो ये नंबर्स क्या है? 73, 15, 10, 2, what are these numbers? Anyone? हाँ, somebody's asked also this one. Okay, yeah. So any guesses? क्या है ये numbers? Percentage of what? Job profiles. Yes, sort of. So basically, these are the broadly number of people working in the percentage of people working in the finance department. मतलब ये एक बहुत ब्रॉड नंबर है, इसको इंडिकेटिव नंबर की तरह लेना है आपको, एकदम हार्ड हार्ड नंबर की तरह मत लीजिएगा। बट ब्रॉडली ये है कि अगर 100 लोग हैं कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो 70 आर वर्किंग समवेयर इनटू अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। मतलब ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एड्स अप टू 102%, ठीक है, थोड़ा बहुत माफ कर दो 1-2% के लिए। ऑडिटर्स के साथ डील करना इसलिए सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि यू कांट डू इवन 1 or 2% मिस्टेक्स, बट इट्स गुड जिन्होंने भी मिस्टेक निकाली है। यस प्रांशुल, गुड वन, राइट, गुड ऑब्जर्वेशन, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। सो द ब्रॉडली द मैसेज इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिवीजन, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसको आप अकाउंटिंग भी बोल सकते हो, इस डिवीजन में सबसे ज्यादा लोग की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसीलिए यू विल सी दैट receivables, payables, fixed assets, financial reporting, there are various verticals like that. और ये स्लाइड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस चीज के लिए रेडी रहना है कि when you will get qualified, you will find lots of opportunity in this vertical. तो मेंटली कई स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि वो तो सोच लेते हैं कि सीए बनने के बाद मुझे तो ट्रेजरी ज्वाइन करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप देखो कि ट्रेजरी में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 3%। 3% पीपल आर वर्किंग फॉर ट्रेजरी डिपार्टमेंट, बहुत छोटा होता है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी हेड, when I was in idea, yes, I remember ट्रेजरी में कितने लोग थे, 3-4 people are there. So are you looking for something which is not available at all, जिसकी डिमांड, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उसकी वैकेंसीज ही नहीं आएंगी, तो फिर क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसलिए वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, दैट हम लोगों को उस इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंगली भी चलना है, नॉट ओनली कि मेरा इंटरेस्ट ये है। समझ रहे हो आप? आपका इंटरेस्ट तो है कि आज स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, राइट, लेकिन ये भी देखना है कि अभी तो लॉकडाउन लगा है, फ्लाइट्स नहीं है, तो कहीं आसपास घूम के काम चला लेते हैं, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू रियली थिंक
you have to see compare it with the availability also, ठीक है. So इसलिए ये numbers बहुत important है आप लोगों के लिए. और जो भी कंपनीज इससे रिलेटेड आती है, कॉर्पोरेट से रिलेटेड, यस डेफिनेटली they do come up with good opportunities, and ultimately people do move up in the ladder. यहाँ से वो मूव करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर बनते हैं, एंड देन सीएफओ बनते हैं, राइट. दिस इज बेसिकली दिस थिंग. प्लानिंग के अंदर देयर आर लॉट ऑफ, इट्स अ बिग टीम, राइट. सो फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी ने पूछा था कि एफपी&ए में क्या रिक्वायरमेंट होती है. एफपी&ए इज मोर अबाउट योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए आपका, पूरी कॉस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. मतलब when I joined IDEA, I joined this particular vertical of financial planning. Okay, this particular vertical looks for your ability to do a good analysis about what needs to be done with respect to financial as well as operational parameters. मतलब आपको डायरेक्टर ये भी पूछ सकते हैं कि रिलायंस जियो के नंबर क्यों ज्यादा हैं और आपके नंबर्स क्यों कम हैं, सब्सक्राइबर के नंबर्स, ठीक है. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग केवल फाइनेंस रिलेटेड नहीं है, आपकी बिजनेस रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर, राइट. सो it's a quite interesting role. Again, as you see, relatively there are lesser number of people working in this department, but there are companies which come and looks for people from who hire chartered accountants for this one. Similarly, taxation की टीम भी ज्यादा करके आप देखोगे तो एक कॉर्पोरेट टीम होती है. It's again a small team. So this slide has a very important significance just to set your expectations right. Okay, you can take a snapshot of this one, and whenever you decide about which field I want to go, okay, you can really refer this particular slide. Firms की अगर बात करते हैं, ठीक है. So firms basically obviously like big 4, big 8, big 10, ठीक है. यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हमने 3 साल की आर्टिकलशिप करी है, ठीक है. नाउ शुड आई ज्वाइन अ फर्म अगेन और नॉट, ठीक है. देखो इसका बड़ा ये भी बहुत एक का क्वेश्चन होता है काफी स्टूडेंट्स का कि बिग 4 ज्वाइन करें या ना करें. इसका भी अगेन सीधा आंसर नहीं है. इसका आंसर ये है कि देखो सबके ग्रोथ पाथ अलग अलग है. आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप उसके अंदर अपना करियर बनाते हो, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि लाइक अल्टीमेटली यू विल बिकम डायरेक्टर पार्टनर, ओके, इफ यू डू वेल इन दैट वन. तो देयर इज डेफिनेटली स्कोप इन बिग 4, बिग 8, बिग 10, उसके अंदर भी वैसा ही है. नाउ वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट, अगेन जैसा मैंने आपको बोला है कि ये भी बहुत इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिस्कशन हो जाता है कि जाना है नहीं जाना है. सो आर्टिकलशिप के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है. जैसे कई लोग बोलते हैं कि आर्टिकलशिप अभी हमारी सही नहीं हुई है एंड वी वांट अ बिग नेम इन आवर रेज्यूमे, तो उनको भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ है सिनेरियो, तो यस, डू वर्क फॉर बिग 4, बिग 8, बिग 10, गेट अ गुड नेम, गुड क्लाइंट्स, एंड देन यू कैन बिल्ड योर करियर, बिल्ड योर सीवी अकॉर्डिंगली. सो ये भी एक टेक्निक है इसको बिल्ड करने की, राइट. सो बिग फॉर्म्स को लेकर ये बट आप लोगों की प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, इसलिए उसके डिटेल्स में उतना नहीं जा रहे. फॉर्म्स स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ईआरपी ऑडिट, जीआरसी, फॉरेंसिक ऑडिट, एसडीसी, जीडीसी, ये सब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती है. सो स्पेशली जब मैं बिग 4 की बात कर रहा हूँ तो उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग. अब यहाँ पे अगर कभी भी आप बिग 4 ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स ऑलवेज स्टैट्यूटरी ऑडिट. इट कुड बी एनी ऑफ दीज 6, ठीक है. इसमें से स्टैट और इंटरनल आप लोगों को क्लियर है. सिस्टम ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट इसमें ज्यादा करके काम सिस्टम ऑडिट का करना पड़ता है. जीआरसी ऑडिट इज मोर ऑफ कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है. मतलब एक कंपनी में तरह तरह के कंप्लायंसेस होते हैं, वो कंप्लायंसेस को जज करना. फॉरेंसिक ऑडिट आप लोगों को पता है, फ्रॉड डिटेक्शन. बेसिकली अगर किसी भी कंपनी में आप सेंस कर रहे हो कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है, और स्पेशली बैंक्स को ये काफी जरूरी है क्योंकि बैंक्स के एनपीएस सभी को पता है. लॉट ऑफ पीपल टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड रन अवे, यस. सो इसलिए वो एक सही टाइम पे फॉरेंसिक ऑडिट पुश करवा देते हैं.
एसडीसी और जीडीसी ये बहुत कॉमन प्रोफाइल्स हैं, आपने काफी सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे आपके हो सकता है फ्रेंड्स इसके अंदर प्लेस्ड हो। पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, ठीक है, सर्विस डिलीवरी सेंटर, मतलब यू वर्क फॉर द यूएस टीम, मतलब यूएस टीम के लिए आप इंडिया में बैठ के काम करते हो, तो इट इज अ सपोर्ट काइंड ऑफ प्रोफाइल, ठीक है। सो दिस देर आर दिस काइंड ऑफ बैक एंड बोल सकते हैं, बट कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसको, इसमें अपॉर्चुनिटीज, लाइक फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी दैट देयर आर स्कोप टू गो अब्रॉड आल्सो। अगर क्लाइंट की डिमांड है 2-3 साल आपने स्पेंड करें, तो फिर उसके बाद आपको वो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट इनिशियली यस, यू कैन से सो दैट इट इज अ सपोर्ट प्रोफाइल. So this is about the opportunities in Big 4, Big 8, Big 10. Because देखो टाइम कंस्टेंट है हम लोगों के पास भी, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा आप लोगों को एक पर्टिकुलर सजेशन ये है कि अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा सेकंड लेवल के क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि कई बार स्टूडेंट से बात होती है, तो वो पूछते हैं कि सर कहाँ आर्टिकलशिप करें, जो लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं, आर्टिकलशिप कहाँ करें। अब आप समझ सकते हो कि किसी को जवाब देना है बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ आर्टिकलशिप करें। आप पूछोगे उनसे कि ओके, आप आगे अपना करियर किधर देखते हो, जॉब में देखते हो, प्रैक्टिस में देखते हो। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है कि आप भी केवल ये बोलोगे कि लाइक वेयर शुड आई स्टार्ट, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। सो जस्ट रिसर्च समथिंग रिलेटेड टू दैट, और उसके बाद आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो मोर अबाउट जीडीसी, एसडीसी, सर जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक उसके, जैसे कोई यूएस का क्लाइंट है, और यूएस का क्लाइंट है, उनका ऑडिट चल रहा है यूएस के अंदर, सो यहाँ पर उसका आपको एक तरह से सपोर्ट करना है उस टीम को जो ऑडिट कर रही है। तो दिस इज बेसिकली सर्विस डिलीवरी सेंटर। इसी तरह से इनकम टैक्स, उनका इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट भी होता है, इंटरनल ऑडिट का भी डिपार्टमेंट होता है। तो सभी डिपार्टमेंट होते हैं जो यहाँ पे उनको ऑफशोर लेवल पे सपोर्ट करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स के अंदर इस पर्टिकुलर डिस्कशन के इमीडिएट बाद हम लोग कैंपस की तैयारी की बात कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या नहीं करना है, ओके। सो दिस इज द, आई बिलीव दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑन दैट वन, यस। सो बेसिकली बैंक्स के अंदर क्रेडिट मैनेजर्स, यहाँ सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसा आप हमने बात करी कि इंडस्ट्री के अंदर डिमांड, इंडस्ट्री के अंदर सीएस को काफी रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसी तरह से क्रेडिट मैनेजर के लिए भी बहुत रिकॉग्निशन है, समझ रहे हो आप लोग। सो दिस इज ऑल्सो वन एरिया वेयर पीपल आर बिल्डिंग देयर करियर्स। आईटी कंपनीज, आईटी कंपनीज के अंदर बिजनेस एनालिस्ट की तरह ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, ओके, मतलब सैप इम्प्लीमेंटेशन, ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए स्टूडेंट्स काफी जाने लगे हैं आजकल। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रोल। सो रोल्स बहुत है, राइट, एंड इट्स लाइक आपको से डिसाइड करना है, ठीक है, कि मुझे कहाँ जाना है। बेसिकली इट्स लाइक दैट। सो ब्रॉडली लाइक वी टॉक्ड अबाउट दीज 5 थिंग्स। वन इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है। इसको अगर समराइज कर लेते हैं एक बार सभी चीजों को, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैंपस ऑफ कैंपस रेफरेंसेस, कहीं से भी आप जाओ, एल मींस लेसर और मीडियम, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ कंपटीशन मिलेगी, इसलिए लेस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसलिए रेफरेंसेस कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री के अंदर आप कहीं भी जाओगे, कैंपस ऑफ कैंपस रेफरेंसेस हमेशा आपको बहुत हाई डिमांड मिलेगी यहाँ पे। फर्म्स के अंदर, ऑडिट के अंदर हमेशा बहुत हाई डिमांड मिलेगी, यस, देयर आर गुड डिमांड्स इन दी फर्म्स इन ऑडिट। टैक्सेशन के अंदर डेफिनेटली लेसर रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट छोटा होता है वो वाला कंपैरेटिवली। और बैंक्स के अंदर, क्रेडिट मैनेजर के अंदर देयर इज अ हाई डिमांड। तो ये स्लाइड आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि फॉर सिक्योरिंग गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, पहली चीज जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज स्किल्स होनी चाहिए। सो इफ द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं,
राइट, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। और जॉब अपॉर्चुनिटीज किस एरिया में है, किस एरिया में नहीं है, राइट, ये आपको इस स्लाइड से ब्रॉडली क्लियर हो जाएगा। सी इज बेसिकली क्रेडिट मैनेजर्स इन द बैंक्स, ठीक है। स्किल्स और दूसरी चीज स्किल्स है, मतलब प्रैक्टिस, तैयारी, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो आई थिंक सो फार आई बिलीव इट इज गोइंग फाइन। कुछ चीजें ऑब्वियसली बहुत डीप डिस्कशन मांगती है, राइट, लेकिन क्या करें, बेसिकली वी हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट। ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट, वी कैन यू कैन सर्टेनली गेट इन टच। आई विल ऑल्सो मेंशन माय नंबर, ठीक है, सो do definitely contact in case if you need any help. All right, so let's talk about campus. Yes, thank you very much, Lenovo. Yeah, it's going well. कैंपस प्रिपरेशंस की बात करते हैं। अब देखो, अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो क्या अवेलेबल है, ये तो आपने देख ली, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो क्या, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ सिनेरियोज लेते हैं जो आप लोग फेस करेंगे, तो उसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली फाइनल और कैंपस प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। वन इज दैट इट इज कम्युनिकेटिव, राइट, और कैंपस में आपको कम्युनिकेशन, इट विल बी ओरल, ठीक है, और इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, उससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि जब आप एग्जाम्स में आंसर लिखते थे तो कहानी पूरी अलग थी, और जब आप सुनोगे क्वेश्चन और आंसर करोगे तो कहानी चेंज हो जाएगी, राइट। कुछ एक एग्जांपल्स लेंगे उसके। अपॉर्चुनिटीज, यस, जैसा मैंने आपको बताया एक ही बार आता है ये सब जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और अभी तक लाइक मैंने जो अभी तक हाईएस्ट पैकेज देखा था हम लोगों की बैच से, दैट इज 45 lakhs। सो वन स्टूडेंट has got this much for an abroad opportunity, okay। सो यस, काफी कुछ आपके हाथ में होता है कि उस एक्सपेक्टेशंस, यस, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लो, बट मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट आप लोगों ने 8 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना है। कई स्टूडेंट्स जैसे ही रिजल्ट आता है बोलते हैं अब कैंपस की तैयारी करनी है, फिर से वो उठा लेते हैं अपनी बल्कि बुक्स, स्टार्ट कर देते थे पढ़ना। देखो वो फायदा नहीं है, अब समझो उस बात को। इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ना है आपको जो इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जीडी और पीआई दोनों डेफिनेटली आप लोगों के लिए नए राउंड्स हैं, क्योंकि रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो कंपैरेटिवली न्यू राउंड्स। कुछ बात करते हैं कि स्पेसिफिक कंपनीज की क्या क्या राउंड्स उन्होंने कंडक्ट करे। ऑडिट के अंदर बात करें, जीडी टेक्निकल राउंड, फाइनल राउंड। विप्रो की बात करें तो रिटर्न टेस्ट, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड। वेदांता की बात करें जीडी टेक्निकल एचआर। एलएनटी की बात करें रिटर्न एचआर फाइनल। बैंक ऑफ बड़ौदा रिटर्न टेक्निकल एचआर, ठीक है। मान सकते हो 30-40 कंपनीज जीडी कंडक्ट कराती हैं, 30-40 कंपनीज रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, लेकिन हर कंपनी इंटरव्यू 100% कंडक्ट कराएंगी, ठीक है। तो तैयारी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ओवरऑल तैयारी रखनी चाहिए। एवरीवन शुड प्रिपेयर एवरीथिंग, okay, you should try to read, to prepare for all rounds, okay, not only interviews, you should prepare almost for everything, ठीक है। resume shortlisting होगी सबसे पहले आपकी, उसके बाद रिटर्न टेस्ट, जीडीज, टेक्निकल, पर्सनल एंड पार्टनर राउंड, राइट। पार्टनर इट कुड बी एचओडी आल्सो, ठीक है। सो यहाँ तक आपको दैट वुड बी द सिलेक्शन प्रोसेस। रिज्यूम के बारे में आई थिंक को ऑलरेडी काफी क्लैरिटी है, ओके। कल एक सेशन हुआ था इस, उसमें मैंने ब्रीफ किया था। रिटर्न टेस्ट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट इज समथिंग व्हिच आई बिलीव इज अ थिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड नाउ। बहुत सारी कंपनीज आती हैं,
और वो अपना पहला राउंड रिटर्न टेस्ट करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला राउंड ही उनका रिटर्न टेस्ट है, ना कि इंटरव्यू। ठीक है, तो अभी तो देखो टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हम लोग इंडिविजुअली आंसर नहीं लेंगे क्वेश्चंस के, लेकिन स्नैपशॉट ले लो आप। और आज जब भी टाइम मिलता है कोशिश करो कि 2-2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। आर यू गेटिंग टू, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 मिनट्स? ज्यादा बोल रहा हूँ ऑल्दो मैं, 1 मिनट में होना चाहिए, बट फिर भी 2 मिनट्स में आप कर पा रहे हो क्या? Why I'm saying you this thing? Because companies like Wipro, companies like L&T, Reliance, okay, TCS, they have their written round, and it is the initial round. पहला round ही ये है, and they will judge your aptitude. Aptitude means maths and logical reasoning. Are you getting my point? Okay, so we have got the answer also. Fantastic. All right, so अच्छी बात है. That so 66 to third. Okay, it is a प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दी सेल्स. ठीक है, सेल्स के ऊपर दिस इज द राइट आंसर. लेकिन अगर कॉस्ट की बात करोगे तो इट विल बी 100% ऑप्शन बी. ठीक है, बट स्टिल ट्राई टू सॉल्व फॉर दीज टू क्वेश्चंस. कंटेक्ट समझ रहे हो आप इसका और इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि ये राउंड कंडक्ट होते हैं, कुछ कंपनीज कंडक्ट कराती है, और यहाँ पे ऑब्वियसली सबके लिए नया होता है, क्योंकि ये आप सब लोगों ने 10th 11th में पढ़ा था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 9th 10th में पढ़ा था, राइट? उसके बाद से प्रैक्टिस छूट छूट चुकी है. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट. या सो कैलकुलेटर्स, यस, अभी तो कुछ भी अलाउड नहीं है सच, लेकिन अब ऑनलाइन रहता है तो सब अपने अपने तरीके यूज करते हैं. बट इन चीजों में कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं लगती एक्चुअली, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा है. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी स्नैपशॉट ले लो. सो एज आई टोल्ड यू, मैथ्स, बेसिक मैथ्स एंड देन रीजनिंग्स, राइट? इसका स्नैपशॉट ले लीजिए. इस क्वेश्चन का भी स्नैपशॉट ले लो. सो दीज वर दी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड इन चारों क्वेश्चंस को आज आप सॉल्व करो. देखो कितना टाइम लग रहा है. अगर लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है इसके अंदर, दैट मीन्स यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. और मैं एक लिंक आपको भेज रहा हूँ, राइट? आई फाउंड दिस इज अ गुड वेबसाइट, ठीक है. और इस मतलब ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वैसे तो, बट ये indiabix.com, इसमें टॉपिक वाइज काफी क्वेश्चंस है, तो हेल्प ले सकते हो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट की. और खास तौर पे मतलब इसमें जो लोग एमबीए की तैयारी कर रहे होते हैं जो, सो उस और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट कहीं से भी आप तैयारी करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन के ऊपर. अभी आज का जो कोर एजेंडा था, ऑब्वियसली हमारा जो कोर एजेंडा है वो है कि प्लेसमेंट प्रिपरेशंस, राइट? सो आर्टिकलशिप बेस्ड क्वेश्चंस. आपने आर्टिकलशिप में क्या चीजें करी हैं? 3 साल में आपने मेजर अचीवमेंट्स क्या हासिल किए हैं? क्या आपने अच्छे सजेशंस दिए हैं? क्या आपने ऑडिट के अंदर अच्छे ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे. दैट इज आर्टिकलशिप बेस्ड क्वेश्चंस. प्रोफाइल रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस, कंपनी की जो नीड है, कंपनी की जो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. फिर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस और सीवी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. सो ये 4 पार्ट में रहेगा डिवाइड. देखो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे लेते हैं, उसका कंटेक्स्ट भी समझते जाओ और आंसर्स भी देते जाओ. सो ये आई थिंक स्लाइड के ऊपर हम लोग कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और कोशिश करो जितना आप अच्छे से इसके पीछे के मैसेजेस समझ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है. All right, so let's start with the first one. Practical expedient in India is 116 lease modification due to COVID-19. ठीक है, PWC में it was asked. ठीक है, yes, any quick answer on this one? Practical expedient, although ये इसका एकदम सीधा आंसर नहीं है,
बट 2-3 लाइन में जो भी लिख सकते हो आप. No lease modification required if the rent was excused during a specific period. The lease modification is not required. Very good. Yes, well done. So lease modification की requirement नहीं है, ठीक है, if it is for a specific period based on some conditions. Yes, you're right. Okay, so good that a lot of you are giving the answers for this question. So इसमें important क्या है समझना. पहली बात ये है कि जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो उसमें 116 को नोट कर लो आप. इंडेक्स 116 बहुत अच्छे से पढ़ना है. रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. अब उसके अंदर भी और इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोविड-19 का पर्टिकुलर इंडेक्स के कारण प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट इंट्रोड्यूस हुआ था. But the bottom line is that whatever is giving impact on financial statements, that thing become very important. Those things become very, very important, right? So this is one thing, and I got a lot of answers. Fantastic. काफी लोगों ने आंसर किया है. Lease modification is not required. It is for a specific period. Yes, due to COVID-19 is not required till certain conditions. और वो लोग फिर उस कंडीशंस को पूछते हैं वो क्या कंडीशंस थी, ठीक है. बट आई एम नॉट आस्किंग यू दोस वंस. आपको जस्ट सेल्फ असेस करना है दैट डू यू रिकॉल दोस कंडीशंस. इफ यू कैन रिकॉल, फैंटास्टिक. राइट, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वी नीड टू this have this one. Okay, so a lot of you have given this answer right. What is the difference between IFC and internal audit? Internal audit और IFC के बीच में क्या डिफरेंस होता है? Any quick answer for that? What is the difference between IFC and internal audit? IFC focus on controls for financial statements. Okay. And internal controls overall department. Internal controls overall operations. IFC आपका कहने का मतलब है कि फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करता है और इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशंस के ऊपर. इंटरनल ऑडिटर यूजेस IFC. इंटरनल ऑडिटर यूज करते हैं IFC या स्टैट्यूटरी ऑडिटर यूज करते हैं? Internal audit is as per section 138 while IFC is required as per section 134. अब देखो ये आंसर वो है जो आप एग्जाम्स में लिखते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको वो आंसर देना है जो आप बेसिकली देखो पर्पस क्या है इसका क्वेश्चन पूछने का कि आपको फंडामेंटली क्लियर है कि नहीं दोनों कॉन्सेप्ट. फंडामेंटल क्लैरिटी, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, उन दोनों के यूजेस क्या है, ठीक है. IFC is internal IFC is internal control existing in internal audit checks whether they are working appropriately or not. Okay, yes, better answer. In IFC audit, there is no suggestion offered to the management on the gaps are highlighted. बट आप अगर गैप हाईलाइट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को सजेशन इनडायरेक्टली तो दे ही रहे हो. If no experience of audit in articleship, then still will they ask questions? Yes, obviously. अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. इररेस्पेक्टिव ऑफ आपने कहाँ से आर्टिकलशिप की और क्या आर्टिकलशिप की है, अगर आप स्टेट ऑडिट के इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक्सपेक्ट करना ही है आपको कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे ऑडिट रिलेटेड. इट डजंट मैटर टू देम कि आपका उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है या नहीं. Main focus of IFC is on financial reporting, while internal audit focuses on efficiency of operations. Okay, IFC is used by statutory audit and is based on. Okay, so Muskan, Shubham, Lovely, Sandeep, Priyansh, Rahul, Vani, Harpreet, good. Lot of you have given the answers. So देखो इसमें से
कुछ आंसर सही है, कुछ थोड़े से और उसमें एडिशंस चाहिए. Basically, the answer is IFC is for financial controls. Internal financial controls is basically used by a statutory auditor, and they have to see whether internal financial controls are existing in the company or not. And if they are existing, whether they are strong enough or not. And this statutory auditor will report in their audit report. ठीक है, audit report का part होता है to comment on the effectiveness of internal financial controls. But internal audit is something different. Internal audit could be done for anything. It could be done for financial or operational. So internal audit is very wide. It could cover things which are already covered in IFC also. Okay. So internal audit is completely, it could be financial, it could be operational, it could be anything. And IFC has a very, very specific purpose, right? Or examples क्या है IFC के? Purchase process. Purchase process is an example of IFC. Collection process is an example of IFC, right? लेकिन हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है या नहीं है, ये IFC का एग्जांपल नहीं है, राइट? ये बेसिकली आ जाएगा इंटरनल ऑडिट के अंदर, अगर इंटरनल ऑडिट में एम्बुलेंस कवर होती है तो. ओके, सो गुड वन. लेट्स टेक सम मोर आंसर्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? ये तो मैं मानता हूं कि आप लोगों से कभी भी पूछा जाए आप आंसर कर दोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? Does IIM paragraph means that report is qualified? Second question जो है उसका आंसर देना चाहिए आप लोगों को. Does IIM para in a report means that report is qualified? No, no. Muskan, Pradeep, Lovely, Mahima, no. Big no. No, it means the report is modified, not qualified. Okay, fantastic. 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 Everyone is right here. Okay, good job. Okay. Fantastic, right? So this is a good answer. Or everyone has given the perfect answer to this one. It doesn't mean that report is qualified. Value of asset is 10 lakhs. This is one of my favorite questions. मैं काफी जगह पूछता हूँ अलग-अलग forums पे. Value of asset is 10 lakhs and life is 10 years. How much depreciation is charged every year as per Companies Act? So we have got 1 lakh. Which asset it is based on? It is based on percentage. Okay. 1 lakh, 95,000, 95,000, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. ठीक है, देखो 1 lakh is not the right answer. ठीक है. Very good, very good, very good. I got the answer in this one. Sandeep. Connecting ने भी सही आंसर दिया है, right? So the right answer is basically it depends which method you are using, whether it is SLM or WDV, and it is up to the management which method they would like to use, and it will be purely based on the usage of that asset. Yeah. So it is basically based on the use that asset will generate over a period of its time. If NPV is positive 1 crore, ये क्वेश्चन किसके लिए? ये है फाइनेंस के लिए, जो लोग फाइनेंस प्रोफाइल. अब जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट मैनेजर्स, अगर उसकी बात करें, राइट? सो यू शुड see this kind of questions. If NPV is positive 1 crore purely based on financial perspective, will you approve that project? Yes. Depends on the required IRR. Okay, so got 2 answers. Yes, got 3 answer. 4th answer, yes. No, depends on non-financial. नहीं, non-financial तो नहीं देखना इसमें. Only on financial perspective. Initial investment, yes. Okay, fantastic. Yes, yes, we should consider payback period. Okay, so I have got 2 right answers here. Okay, one answer is of Pranshul. Depends on the required IRR.
and second answer of Purva, basis the initial investment, right? Yes, so very good answer. आपने सपोज 1,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगाया है और उससे आपको नेट नेट मिलता है 1,001 करोड़, ठीक है, तो आप करोगे क्या इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियसली नहीं करोगे, राइट? 1,000 करोड़ लगाया और 1,001 करोड़ मिलता है। सो प्राइमरली डिपेंड करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, और वो नहीं है इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो आईआरआर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, राइट? सो दिस इज a question which is related to the banks. How will you compute the cost of equity? इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकालते हो? How will you compute that? How will you compute the cost of equity? So it is very good, perfect answer. CAPM, Walter's growth model, CAPM, fantastic, right? So you're all right. So the right answer for this one is the methods that you particularly use, and the most popular method is CAPM model. Very good, yes. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है? ये देखो, ये क्वेश्चंस इसलिए नहीं थे कि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कम से कम 1,000 क्वेश्चंस है, राइट? जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं हम उनसे फीडबैक लेते हैं और उनसे समझते हैं कि किस कंपनी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, तो ये बेसिकली उसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन है। यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू आपको ये तो जज करना ही है कि लाइक हाउ वेल यू आर अपडेटेड विद दीज आंसर्स, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड इट, ठीक है? तो एक जो पॉइंट मैं आप लोगों को कह रहा था वो यही पॉइंट था कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और आपसे स्ट्रेट अवे पूछा जाता है the difference which I was telling you, that what is the difference between written communication and oral? The moment you come and they say, okay, tell me, you are an auditor for a telecom company, how will you audit the revenue for prepaid and how will you audit the revenue for postpaid customers as per Ind AS 115? You do not get much time to think about all this, right? That is the one. Second, even if you think, you have to frame the language and then you have to give the answer. ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए मेरा बहुत स्पेसिफिक एम्फेसिस इस पर होता है कि आप लोग मॉक इंटरव्यूज जरूर देके जाओ। हम लोग भी क्लासेस में मॉक इंटरव्यूज पर बहुत फोकस करते हैं क्योंकि उससे थॉट प्रोसेस फास्ट होती है और यू गेट द राइट वर्ड्स एट द राइट मोमेंट, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, इस क्वेश्चन में बेसिकली बहुत सारे सिनेरियोस मिलेंगे आपको जिसमें वो सडन क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? नाउ ऑब्वियसली लाइक ये जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट विल टेक टू मच ऑफ आवर टाइम टू डिस्कस, तो अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके? और हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यूज? यस, बहुत सारे फोरम्स हैं, लाइक इंक्लूडिंग अस, हम लोग कैंप्रेप पे भी डू प्रिपेयर यू फॉर मॉक इंटरव्यूज। लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोफार्मा इनवॉइस एंड एक्चुअल इनवॉइस, क्या डिफरेंस है? प्रोफार्मा इनवॉइस और एक्चुअल इनवॉइस में क्या डिफरेंस है? एनीवन? Proforma is quotation, okay. All right, good answer, kind of that, okay. Proforma invoice is estimated invoice, okay, this is good answer, yes, even perfect answer. It is a provisional invoice, you can say. उसका लीगल वैलिडिटी कुछ भी नहीं प्रोफार्मा इनवॉइस की, लेकिन वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि आपको पता है ये इनवॉइसिंग आ गई है, एक बार इनवॉइस अपलोड हो गई, उसको कैंसिल करने में दिक्कत आती है, इसलिए बेटर है कि प्रोफार्मा इनवॉइस भेज दो, कोई भी गलती होगी पहले ही पकड़ में आ जाएगी। क्लियर है आपको? नहीं, इंटरनल यूसेज के लिए नहीं है, you give it to your vendor just to check whether everything is fine or not.
Okay, good answers. Yes, everyone is right. Here is an estimated and preliminary bill. That one, right, is attached with the PO. नहीं, PO से नहीं करते हैं, बाद में आता है, PO के बाद होता है ये वाला स्टेप जो आता है. ठीक है. सो ये क्वेश्चंस, अब ये इन क्वेश्चन, अब एक बार इन क्वेश्चंस के पीछे का रेलेवेंस क्विकली समझ लेते हैं. अगर आप बिग फोर टाइप ऑफ फर्म्स में जा रहे हो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, प्लीज फोकस ऑन इंडेस वेरी वेल. उनका फोकस होता है इंडेस पे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इंडेस में भी जो खास, जो उनका सबसे फेवरेट इंडेस होता है वो होता है इंडेस 115. तो अगर आप तैयारी चालू कर रहे हो, इंडेस 115 जरूर पढ़िएगा. बहुत क्वेश्चंस आते हैं. जितने इंटरव्यूज में देखता हूँ, उन इंटरव्यूज में, अच्छा, नॉट ओनली बिग फोर्स, कॉर्पोरेट्स भी इंडेस 115 बहुत पूछते हैं. और उसका रीजन ऐसे भी आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल के लिए वो अगर आपको हायर कर रहे हैं, तो रेवेन्यू बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. P&L का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही रेवेन्यू. सो रेवेन्यू में डिपार्टमेंट ही अलग होता है. सो ऐसे केस में 115 बहुत अच्छे से पढ़िएगा. 116 उसके बाद इंडेस 16, इंडेस 2, ठीक है. देन डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी. ओके. सो ये कुछ जो प्राइमरी इंडेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो आपको सीक्वेंशियली मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद भी डेफिनेटली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी इंपॉर्टेंट है. फिर वो कंपनी टू कंपनी थोड़ा वेरी करता है. जैसे कोई एक फर्म है जहाँ पर, जो कि जैसे बैंक्स है, बैंक में अगर आप जा रहे हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है. सो फिर उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. बट 115 को कुछ खास इंपॉर्टेंस जरूर दीजिएगा when you start preparing for interviews. इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर? तो देखो, इसका आंसर शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. प्रीपेड या पोस्टपेड, कोई भी रेवेन्यू, इट डजंट मैटर, it will be recognized at a point in time or over a period of time if any of the three conditions will be satisfied. और वो तीनों कंडीशंस आपको बतानी है कि ये तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम. ठीक है. अब कस्टमर ने पहले पैसा दे दिया या बाद में पैसा दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कैश का कस्टमर है या क्रेडिट का कस्टमर है, रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज जैसे होती है वैसी होगी. यस. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, राइट नाउ. सो ये पॉइंट क्लियर है आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए. इंटरनल ऑडिट के लिए जा रहे हो तो यस, इंटरनल ऑडिट के बारे में थोड़ा, आईएफसी के बारे में. बैंक्स के लिए जा रहे हो, रेशियो एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है. रेशियो एनालिसिस समथिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है. और कॉर्पोरेट्स के लिए अगर जा रहे हो तो यस, हाँ, फर्म्स के लिए अगर जा रहे हो तो ऑडिट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जांपल जो कारो रिपोर्टिंग है, न्यू कारो रिपोर्टिंग, उसको अच्छे से देख के जाओ. उसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एंड देन some important areas like mortality, areas like audit assertions. Okay, this is something which is very very important. ठीक है. सो टेक्निकली वो ये नहीं देखेंगे कि आपका आर्टिकल एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड है या नहीं है. उनको जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस. कई बार स्टूडेंट्स बताते हैं कि लाइक हमने लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं करा है. मतलब वो अपनी लिमिटेशंस बता देते हैं खुद से कि हैव यू डन स्टैट्यूटरी ऑडिट. वो बोल देते हैं नहीं, हमने नहीं करा है. उनको डर लगता है कि अगर बता दिया तो क्वेश्चन पूछेंगे. पर आप नहीं बोलोगे तो वो क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं आपसे, और वो और बड़ी रिस्क है, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन है. फिर तो आप वर्क प्रोफाइल के लिए तैयार नहीं हो ना, इसका मतलब. समझ रहे हो आप लोग बात को? तो इस पॉइंट प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो आप. ये मत सोचो कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो फिर इस लाइन से रिलेटेड कैसे जा सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी है आपको, ये समझ के कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट, देन यू कैन सर्टेनली प्रिपेयर वेल. और टेक्निकल देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपने जो बाकी स्किल्स हैं वो स्किल्स अपनी जगह पर है, लेकिन टेक्निकल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं. आपने बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करा है, यू ड्रेस्ड अप वेरी वेल, एवरीथिंग इज फाइन, योर इंग्लिश इज वेरी गुड, लेकिन उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है
प्रोफाइल को लेकर वो फुलफिल नहीं होगी, तो देखो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो टेक्निकली यस, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ various companies, right? And accordingly we need to prepare. और क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस. P2P प्रोसेस इंटरनल ऑडिट के लिए इसका स्नैपशॉट ले लो. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज कंसिडर्ड बाय बैंक्स व्हाइल असेसिंग प्रपोजल फॉर बिजनेस लोन. Difference between private equity fund, hedge fund. Is it compulsory to fair value PP as per India's going concern? तो ये क्वेश्चंस कुछ और क्वेश्चंस हैं. Okay, and there are a lot of similar questions. But the message behind all these questions is that you have to be very, very specific, read important stuff related to industry, and don't assume that you will not be asked questions if you have different articleship experience. ठीक है, वो पूछेंगे आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर एरियाज. डायरेक्ट टैक्सेशन. यस, डायरेक्ट टैक्सेशन जितने भी अपडेट्स हैं आप लोग का जब तक स्टार्ट होगा, आई बिलीव कहीं ना कहीं बजट की न्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, सो बजट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. अपार्ट फ्रॉम जैसे आपने अगर डायरेक्ट टैक्सेशन रोल के लिए जा रहे हो तो कोई ना कोई स्क्रूटनी नोटिस हैंडल किया होगा. वो नोटिस के बारे में अच्छी सी प्रिपरेशन करिए. डिपार्टमेंट का क्या पॉइंट था, आपका क्या पॉइंट था, कैसे उस क्वेश्चन को रिजोल्व किया, और उसमें बेसिकली कौन से सेक्शंस अप्लाई करें, कौन से केस लॉज यूज करें, और उसके अलावा बजट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं. वैसे तो अभी टीटी में बहुत अपडेट्स नहीं आ रहे, पर फिर भी जो 1-2 सालों में जो कुछ इंपॉर्टेंट टीडीएस के अंदर जैसे नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, टीसीएस इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये कुछ चीजें हमको देख के जानी है. दैट्स ऑल. ठीक है, सो टेक्निकल आई एम श्योर कि ब्रॉड क्लैरिटी आपको मिली होगी कि टेक्निकल क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और आप लोग उसके लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. इसमें ये मत सोचना कि प्रिपरेशन इज डिफिकल्ट. नहीं, यू कैन प्रिपेयर. कुछ एक एग्जांपल्स भी मैं और कोट करूंगा आपको कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स के. ठीक है, सो राइट, yeah, so it's I hope you people are not getting exhausted. Yes, बहुत डीप और लॉन्ग डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, मुझे जो बताया गया था टाइम लिमिट, उस टाइम लिमिट इसके मैं थोड़ा नजदीक पहुंच रहा हूँ. ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग और कोशिश करेंगे कि जितना फास्ट और कवर कर सके एंड यू पीपल गेट थिंग्स एज इजीली एज पॉसिबल. एचआर के क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्सनालिटी एंड थॉट क्लैरिटी. अच्छा, इस राउंड को भी लाइटली नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना लाइटली? बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पहला राउंड एचआर राउंड होता है. बहुत सारी कंपनीज होती है, वो सोचती है कि यार क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, पहले टेक्निकल करके फिर एचआर. मुझे कैंडिडेट अगर शुरू से ही समझ आ गया कि इनका इंटरेस्ट नहीं है इस लाइन में, तो उनको नहीं लेंगे. समझ रहे हो आप? ये तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं. जैसे एप्पल के बारे में आप सुनोगे कि वो बहुत राउंड्स करती, कंडक्ट 8 से 9 राउंड्स होते हैं उनके. ऑल्दो इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जब वो लेकर जाती है तो बताते हैं कि वो टेक्निकली 1 या 2 राउंड्स कंडक्ट करती है. बाकी जो राउंड्स होते हैं उसमें वो पर्सन का इंटरेस्ट जज करती है कि ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है या नहीं है. अगर नहीं है तो उनको पता है कि ये बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे. सो एचआर राउंड आप समझो कि उसी लाइंस के ऊपर बेस्ड है. दे बेसिकली जज योर थॉट क्लैरिटी. Are you getting my point? So thought clarity के ऊपर आपको, thought clarity means whether you really, if you're saying that I'm joining Big Four statutory audit, are you really interested for it or not? They will judge that point. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चन को जज करने के लिए वो आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं. Explain your plan after 5 years, 10 years and 15 years down the line, right? So किसी ने आंसर दिया है कि 5 years I would like to work in finance department, and by 10th year I would like to start my own company, and by 15th year I will be having maybe few more ventures, right?
Do you think it is a right answer? It is not a right answer from the company's point of view. They'll see you as a long term resource. ठीक है, तो आप 5 साल तो यहाँ काम करोगे, उसके बाद आप कंपनी छोड़ दोगे, उनके लिए नुकसान की बात है. ठीक है, सो बेसिकली वो जज कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है उस एरिया में या नहीं है, और आपकी कितनी स्टेबिलिटी रहेगी. राइट, किसी ने पूछा भी था ये क्वेश्चन, किस तरह से आंसर करना है. तो इस तरह से आंसर करना है कि दे शुड सी दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल. सो एक एग्जांपल किस तरह से आंसर कर सकते हैं. बेसिकली आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट department, and I would like to learn the best practices prevailing in the industry. Over the period, I definitely try to enhance my technical skill as well as soft skills so that I can take and assume higher responsibilities. ठीक है, इसमें सारी चीजें आ जाती है. इसमें ये भी आ जाता है कि you look for promotions, you look for challenges, you look for stat audit, everything will come in this particular answer. ठीक है, so there are every HR question has some purpose behind it. ठीक है, और वो पर्पस आपको समझना है. ठीक है, एक्सेंचर जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई आर यू ज्वाइनिंग नॉट ज्वाइनिंग फर्म्स. आप ऑडिट फर्म क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो, 3 साल आर्टिकलशिप करिए, नाउ यू आर नॉट गोइंग फॉर ऑडिट फर्म्स, व्हाई. राइट, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दैट. व्हाई यू आर ज्वाइनिंग इंडस्ट्री, बैंक में जाते हो पूछेंगे व्हाई आर ज्वाइनिंग बैंक. उनका क्वेश्चन बड़ा सीधा है एक्चुअली. वो जानना चाह रहे हैं कि आप इसमें लंबे चल पाओगे या नहीं चल पाओगे. आपका इंटरेस्ट होगा तो आप चलोगे, और नहीं है तो नहीं चलोगे. राइट, ठीक है, एक्सप्लेन योर वीकनेसेस लाइक दैट. सो ऐसे करके अगेन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अगेन अगर हम लोग इसमें डीपर जाएंगे तो और बहुत सारे डिस्कशंस निकलेंगे, लेकिन जो मेन मैसेज है एचआर राउंड के लिए वो ये है कि स्टेबिलिटी, उस एंगल से जरूर सोचिएगा. आप जब भी अपने आंसर्स फ्रेम करो, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर फ्रेम करना. हर क्वेश्चन के पीछे कहीं ना कहीं ये एक सवाल होता है उनका. यू आर द सिंगल चाइल्ड. ठीक है, हाउ विल यू मैनेज टू वर्क आउटसाइड योर होम टाउन. ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. क्लियर हो रहा है आपको. तो ये क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर. और जब भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे कि मतलब स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी तक हमको उनको एंश्योर करना है कि यस आई विल बी स्टेबल ओवर देयर. ठीक है, नाउ सो और कंसर्न्स है. देखो, एक कंसर्न जैसा आप लोगों को अभी जस्ट मैंने दिया है, डायरेक्ट टैक्स में आपका जॉब सपोज आपको मिलती है रिक्वायरमेंट, और आर्टिकलशिप है आपकी बैंक ऑडिट के अंदर. ये सब सिनेरियोस बन सकते हैं where there is a difference in the articleship and the job requirement. बट इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि हम नहीं जा सकते हैं ऐसे एरिया में. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपने सब सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ के कुछ तैयारियां करके यू कैन डेफिनेटली क्रैक दीज इंटरव्यूज. ठीक है, और मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको और प्रेजेंट करता हूँ. सो वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश द सेकंड सेक्शन जो कि रिलेटेड टू कैंपस प्रिपरेशंस है. जैसे कि लाइक ये भी एक स्नैपशॉट ले लो आप, ये बहुत काम का स्नैपशॉट है. जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने प्रिपरेशंस आर्टिकलशिप कुछ और करी है और किसी और एरिया में जाना है, ठीक है, वो लोग समझ लो इस स्लाइड को आराम से. जैसे कि आप ऑडिट में जा रहे हो और ऑडिट की, तो कारो 2021 अच्छे से पढ़ो और बताओ उनको कि लाइक रिसेंटली आई रेड अबाउट इट, आई एम इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई आई रेड दिस वन. एफआर में जा रहे हो तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. जीएसटी में जा रहे हो तो लाइक दिस वन, डायरेक्ट टैक्स में दिस वन. So this is some examples. That's how you can handle the interviews in a different profile. लास्ट पॉइंट इसके अंदर जीडीज के लिए है. ठीक है, जीडीज कुछ टॉपिक्स देख लो एक बार.
कुछ टॉपिक्स और कुछ कंसर्न्स। इसका स्नैपशॉट इसलिए ले लो आप लोग कि जब भी जीडीज की तैयारी करनी है तो जीडी में अपीयर होने के पहले इन सब के आंसर पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू स्टार्ट, मैं अपना जीडी का पॉइंट कैसे स्टार्ट करूं, ये पता होना चाहिए आपको कि हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, एक जीडी में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हाउ मेनी एंट्रीज आई हैव टू टेक। ऐसा तो नहीं कि लाइक मैंने 15-20 एंट्रीज ले ली है, या ऐसा तो नहीं कि मैंने एक या दो एंट्री ली है केवल, एक दो पॉइंट बोले हैं, दैट्स ऑल। बहुत अच्छे पॉइंट बोले आपने, लेकिन क्या दो ही पॉइंट बोल रहे? सपोज कोई टॉपिक आता है कि लाइक इंडिया और चाइना, राइट, इंडिया वर्सेस चाइना। सो शुड आई टेक अ स्टैंड हियर, आई शुड स्पीक अबाउट इंडिया और शुड स्पीक अबाउट चाइना, और शुड आई टेक अ न्यूट्रल स्टैंड? ठीक है, सो दीज आर सर्टन पॉइंट्स विच, सो अभी मैं आप लोगों को केवल क्वेरीज आपके सामने रख रहा हूँ कि हमको जीडीज में जाना है तो पहले ही आंसर करना है, क्लैरिटी। उसके बाद 10 मिनट जो मिलेंगे, उन 10 मिनट में आप आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है, अगेन इसका भी एक स्नैपशॉट ले लीजिए। डू यू नो हाउ मच इज जीडीपी ऑफ इंडिया? डू यू नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज? डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड? इफ यू नो, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, इंटरव्यू और जीडी दोनों के लिए रीडिंग चाहिए। ठीक है, कल को किसी स्टार्टअप में आप जाते हो, वो पूछ सकते हैं आपसे कि 2-3 स्टार्टअप बताओ जो अभी, जिन्होंने अभी अपना आईपीओ लॉन्च किया और क्या प्राइस पे लॉन्च किया और उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के लिए रीडिंग्स जरूरी है। ठीक है, रीडिंग्स के लिए यस, रेफर एनी गुड न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ओके, प्लीज रीड दी स्टफ, राइट। इसका भी एक फोटो ले लो which is basically actual topics for group discussions, राइट। सो इस टाइप के टॉपिक्स आप मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ओके, करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा टॉपिक्स जनरली आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट सम पार्ट रिलेटेड टू सेल्फ क्लैरिटी। ये सब कैंपस प्रिपरेशन, अभी तक हमने दो बातें डिस्कस कर ली है। 3 पिलर्स हमने देखे थे स्टार्टिंग में। फर्स्ट पिलर वाज द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या अवेलेबल है। दूसरा, आप उस अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को कितना अच्छे से तैयार कर रहे हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है क्लैरिटी, कि आपको कितनी सेल्फ क्लैरिटी चीजों की है, उसी के अकॉर्डिंगली आप जॉब पिक करोगे। ठीक है, सो एक क्विक थॉट, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जाती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सुपर एक्सपेक्टेशंस, और होनी चाहिए, यस। किंग ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो फीलिंग आती है अलग ही रहती है। 2-3 दिन तो लाइक व्हेन आई क्वालिफाइड, यस, वो जो फीलिंग थी, क्या गजब की फीलिंग थी, आई कांट एक्सप्रेस, यस। सो दिस इज बेसिकली लीड्स टू हायर एक्सपेक्टेशंस। ओके, एंड हायर एक्सपेक्टेशन इज लाइक सो मेनी एक्सपेक्टेशन, प्रोफाइल। सो बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है, व्हाट डू यू वांट, सो दे से लाइक आई एम सिटिंग राइट नाउ इन इंदौर। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे लाइक इंदौर एज अ सिटी। ओके, so what do you want? So I want a job in Indore. What profile you want? I want a profile in investment banking. What brand you want? I want a brand like a Standard Chartered Citibank. How much money you want? Maybe around 15-20 lakhs. And work life, yes, obviously 10 to 6 and weekend off. So ये basically expectation, और ऐसा नहीं है कि ये मैं केवल आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ हैं स्टूडेंट्स जिनसे मेरे ऐसे डिस्कशन हुए हैं करियर काउंसलिंग के लिए, जब कई बार बातें होती है तो, क्योंकि दे नो दैट दे हैव डन वेल, और जो आप सीए क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है।
तो एक्सपेक्टेशन नेचुरली हाई हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये समझना है कि एट द सेम टाइम ऑल दीज 5 रिक्वायरमेंट्स विल नॉट बी फुलफिल्ड। प्लीज समझो उस बात को, इसमें से 1 या 2 आपको ड्रॉप करना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हो तो वर्क लाइफ बैलेंस ड्रॉप करना पड़ेगा, सिटी ड्रॉप करना पड़ेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वो आपको जनरली मेट्रोज में मिलेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट में अगर जा रहे हो तो मे बी यू हैव टू लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज ऑन सिटी एंड मनी ऑल्सो, क्योंकि मनी का तो ऐसा है कि कंपैरिजन होते हैं ना कि इनको इतना मिल रहा है उनको उतना मिल रहा है। सो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, बाकी चीजें मिल जाएंगी। स्टार्टअप में जाओगे ब्रांड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, वर्क लाइफ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। सो पहला, जब भी लाइफ में डिसीजन लेने हो तो इस स्लाइड पे ध्यान रखना कि इनमें से क्या चाहिए हमारे लिए। तो ये बेसिक नेसेसिटी है। जैसे कई स्टूडेंट्स को बड़ा क्लियर होता है कि मनी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, आई नीड मनी, उसके बाद देखेंगे जो है। तो ऐसे करके पहले डिसाइड कर लो। या कई स्टूडेंट्स के लिए बड़ा क्लियर होता है, आई वांट टू वर्क ओनली इन माय होम टाउन, बाकी फिर बाकी तो आप पहले उन चीजों को फिक्स कर लो एंड देन अदर्स कुड वेरी, बट एक्सपेक्टिंग ऑल 5 definitely it's very difficult, very difficult. In fact, I have not seen any such case who have got all 5. ठीक है, all right, so this is one point. Then second is see there are some real case studies. वर्क लाइफ बैलेंस देखो ऐसा है कि वर्क लाइफ बैलेंस अगर कई बोलते हैं कि 10 से 5 चाहिए मुझे या 10 से 6 चाहिए, तो 10 to 6 जो चाहिए वो वर्क लाइफ बहुत ही मुश्किल है कहीं भी मिलना। पर फिर भी कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कंपैरेटिवली बोलते हैं कि कॉर्पोरेट्स और बिग 4 में अगर कंपेयर करोगे तो कॉर्पोरेट्स की फिर भी बेटर होती है। तो रिलेटिवली अगर बात करें तो यस डेफिनेटली यू कैन डू अ कंपैरेटिव दिस थिंग। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखोगे तो वहां सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है। वहां तो बताते हैं कि कई बार ऑन एन एवरेज 16-17 आवर्स वर्क करना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से है। ये एक स्टूडेंट थे हमारे जिनको 6 अटेम्प्ट लगे थे, ठीक है, और उनको कहीं से कॉल नहीं आ रहा था, ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। उसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि मेरी आर्टिकलशिप टैक्स में हुई है तो मतलब टैक्सेशन में ही जाना है मुझे, राइट। देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस वन कि अगर कॉल्स नहीं आ रहे कंपनी से और उसके ऊपर आपने एक और फिल्टर लगा दिया है कि मुझे तो टैक्सेशन में ही जाना है, तो आप अपने आप कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है। और उस रेस्ट्रिक्शन में हो सकता है कि आपका टाइम निकलता चला जाए। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा होगा ही, हो सकता है मिल जाए अपॉर्चुनिटी, बट वी आर वेटिंग फॉर समथिंग विच इज विद प्रोबेबिलिटी इज लेस। सो देन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एक्सेप्शनली वेल फॉर बिग फोर्स, ठीक है। बिग फोर के ऑडिट के लिए उन्होंने ट्राई किया, और जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफ कैंपस मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज। ही गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर एंड ही क्रैक्ड इट एंड ही गॉट द जॉब इटसेल्फ। पहला ही जॉब उनका बिग फोर में लगा है। तो 2-3 बातें यहाँ पे। पहली बात ये है कि जैसा मैंने आपको बोला कि अपनी आर्टिकलशिप को कंस्टेंट मत बनाइएगा कि लाइक इसमें है तो इसी में जॉब मिलेगा। दूसरी चीज, अटेम्प्ट्स डेफिनेटली अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको समझो कि अवेलेबल क्या है। कैंपस के अंदर भी अगर अटेम्प्ट ज्यादा है तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने पहले स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करा था, कौन सा ऐसा कैंपस है, कौन सी ऐसी सिटी है जो मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, और ऑफ कैंपस में मेरे कहाँ कहाँ चांसेस होते हैं। तो आप ये सब चीजें पता करोगे, यस वेरी गुड चांसेस। अभी तक जो मैक्सिमम अटेम्प्ट हमने देखे हैं हमारी क्लासेस में वो देखे हैं 13 अटेम्प्ट्स, एंड गुड न्यूज इज कि ही इज प्लेस्ड, राइट। तो बड़ा मुझे भी अच्छा लगता है। ओके, पीपल हु आर इन टफ सिचुएशन, जिन्होंने टफ टाइम देखा है, और if they get something good, so opportunities are there for chartered accountants, and you should not restrict yourself to a few things. ये एक और केस है, देयर वाज अ स्टूडेंट, उन्होंने 4 राउंड्स क्लियर कर लिए और उसके बाद उनका एचआर राउंड में रिजेक्शन हुआ था, ठीक है।
इसलिए एचआर राउंड को भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। इट इज लार्ज कंपनी बहुत फोकस करती है, ठीक है। दूसरा, कई बार आपका जीडी और पीआई का पैनल सेम हो सकता है, इसलिए जीडी में भी अच्छा परफॉर्म करो, वो आपको पीआई में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिनका लॉन्ग टर्म गोल था कि लाइक आई वांट टू गेट इनटू प्रैक्टिस, सो सिलेक्ट द जॉब अकॉर्डिंगली। उनका मन था कि फाइनेंस में करें, फिर फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस में प्रैक्टिस करनी थी, तो उनको अलग अलग कंपनी से ऑफर आए थे, बट ही ऑप्टेड फॉर अ रोल इन एनबीएफसी। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ भी अलाइन कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल क्लियर है आपका तो, ठीक है। सो ऐसे कम से कम मतलब हजारों स्टोरीज हैं, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन यस, द मैसेज फॉर सम ऑफ दिस इज कि कुछ हम लोगों के प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई अप्लाई ऑफ कैंपस और नॉट? जो 45 lakhs का जिनका कैंपस, जिनका प्लेसमेंट हुआ था, ऑफ कैंपस ही मिला था उनको, ठीक है। तो जो जो भी आपके नोशंस हैं, जो भी आप लोगों ने सोचा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली हो सकता है कि वो उसमें कुछ मे नॉट बी 100% राइट, उसको वैलिडेट करो, टॉक टू पीपल, जो जो लोग इस इंडस्ट्री में, कुछ सीनियर्स, एक दो लोग जिनको आप जानते हैं, उनसे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। और इस पर्टिकुलर जो टाइम है, आज कितनी तारीख, 23rd, मे बी अराउंड 3 weeks आर देयर। सो इन 3 weeks में यू शुड फर्स्ट try to find out which area is best suited for me, whether it is whatever areas जो हमने डिस्कस करे थे, वो जो 5 वर्टिकल्स की बात करी थी, which is the best area for me, and for that any information that you need, yes, you can straight away talk to people around, and then as I told you, that you can certainly get in touch with me for any further queries. Yes, this is my direct number also. एंड लिंक्डइन पे आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम देयर, सो लिंक्डइन पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग और कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उस टाइम को, थोड़ा इंडेक्स के बारे में पढ़ो, कॉर्पोरेट और बिग फोर के इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा आपको। सो टाइम अगर है, सो जिन लोगों ने टाइम हो गया इंडेक्स पढ़े को, इंडेक्स के बारे में पढ़िए, ठीक है, 115 116, ठीक है। तो so my LinkedIn profile is with this name only. My name, Gunjan Shrimal. So और ऐसा ही है, मतलब मेरा जो फोटो भी है वो भी लगभग ऐसा ही है जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ, राइट? बहुत ज्यादा पुराना नहीं है फोटो, तो मिल जाऊंगा मैं। So what I was saying is कि prepare Indies 115 116 like that. जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैंने बोला है आप लोगों को वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इसमें टाइम स्पेंड करिए, कॉन्टैक्ट्स देखिए थोड़ा सा, कौन कौन मिल सकते हैं आपको इस एरिया से रिलेटेड, और लिंक्डइन पे आप एक्टिव होंगे तो यस यू विल फाइंड राइट कॉन्टैक्ट्स ऑन दैट वन। जीडीज के लिए प्लीज स्टार्ट रेफरिंग न्यूज़पेपर, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऑल्दो ट्रिक्स रहती हैं उसमें, बहुत सारी ट्रिक्स रहती हैं, लेकिन अगेन ट्रिक्स भी तब काम आएगी जब कुछ बेसिक रॉ मटेरियल आपके पास रहेगा, राइट? तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ओके। तो एक कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, उसको स्टार्ट करो। और लास्ट इज दैट where you should try to contact or start building your contacts, ठीक है। So this is all from my side. आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, हम लोग उनको लेते हैं क्वेश्चंस को। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन फाइनेंशियल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किस प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है? जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे कि आप किसी का कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करोगे, वहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लांट लोकेशन के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। पर बिग फोर के लिए सब इंपॉर्टेंट है, तो बिग फोर में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट मैंने एक आपको सीक्वेंस बताई है कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उसमें I can say that this is moderate important. क्वालिटी ऑफ कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी ऑन लिंक्डइन? ये तो देखो ऑब्वियसली क्वालिटी में ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना ऐसे कि लाइक फेसबुक पे हजारों दोस्त हो लेकिन दो सच्चे दोस्त की क्या वैल्यू है, वो तो वही वाली बात है। ठीक है, यू मीन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बट नॉट एवरीथिंग। यस, वेरी गुड, you got the right point, Lenovo. This is punchline. Prepare according to job profile, but not everything. Yes, you got it 100% right. Business combination and consolidation वाला इंडस्ट्री ऐसी हमने बात करी है। गल्फ कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, देखो गल्फ कंट्रीज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं मिल जाती है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है अगर, तो बहुत इजी हो जाता है। फिर एक आध साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया तो बहुत इजी हो जाएगा फिर जाना। ठीक है, बट डिमांड है वहां पर, बहुत डिमांड है सीएस की। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट वन शुड पोजेस फॉर कॉर्पोरेट्स? कॉर्पोरेट्स के लिए अगेन प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि 70% डिमांड इज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सो इट मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंड एस, and then you should read about a little bit about financial management. कुछ concepts जो important है like IRR, NPV, little bit costing 3-4 टाइप की basic overview of that. लेकिन अगर फिर corporate की डिमांड जीएसटी से रिलेटेड ज्यादा है फिर जीएसटी। ओके, तो प्रोफाइल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट ब्रॉडली what I have seen so far, most important is Ind AS in that one. Can we expect work life balance in equity research analyst role? फिर कौन सी कंपनी ज्वाइन करते हो उस पर डिपेंड करता है। इक्विटी रिसर्च जनरली 5 days तो मैंने देखा बहुत हेक्टिक रहता है, क्योंकि मार्केट 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो इन लोगों को 7 बजे स्टार्ट करना पड़ता है, 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि पहले ग्लोबल मार्केट का आइडिया लेते हैं, तो दे हैव अर्ली स्टार्ट एंड देन अर्ली एंडिंग। I have multiple attempts. My one group is left. Shall I go with any profile that I am getting, or should I go with my interest? देखो आपको आपका इंटरेस्ट अलाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज अवेलेबल। मतलब केवल इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं जाना है, व्हाट इज अवेलेबल आल्सो, दैट आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इफ लाइक, और इसलिए प्लान ए और प्लान बी रखो। प्लान ए इज लेट्स से माय इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट इज प्लान ए। बट व्हाट इफ देयर इज चैलेंज in getting that plan A? Okay, you should go have a secondary plan B also, so that way you can definitely so उसमें फिर audits जो easily available profiles हैं उनको रखिए। opportunities in startups मिल जाती है, opportunities again startups भी ढूंढते हैं अच्छे candidates। स्टार्टअप ज्वाइन करने के पहले बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स हैं कि 10 में से 9 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रिस्क रहती है, इसलिए जो एस्टेब्लिश स्टार्टअप्स है, ठीक है, उनको जनरली टारगेट करना चाहिए। मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर एक दो अच्छे ब्रांड्स आपके रेज्यूम में आ गए, उसके बाद फिर ले सकते हो चांसेस। I am interested in taxation in Big Four. Majority needs US taxation. So is it good to do CPA? Majority needs US taxation. नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप Big Four, maybe I did not understand your question completely. CPA तो बेसिकली अकाउंटिंग के लिए है और टैक्सेशन तो अलग ही चीज है, राइट? तो अगर आपको यूएस की अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है तो यस डेफिनेटली सीपीए प्रेफरेबल रहेगा। लेकिन अगर इंडिया में ही आपको जो यूएस के सपोर्ट ऑफिसेज है वो ज्वाइन करना है तो उसके लिए फिर एडिशनली कुछ भी नहीं चाहिए। maybe I could not understand your question, so you can further clarify.
I want to go to FR profile. So what skill mainly they want? Index. Yes, financial reporting के लिए Index. Very, very important. Could you please advise regarding pursuing PGD and MBA after qualifying or after work experience? मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर फुल टाइम कोई कोर्स ऑप्ट करना है तो पहले वर्क एक्सपीरियंस लो, 1 साल का कम से कम, और खासतौर पे एमबीए करना है 1 साल कम से कम वर्क एक्सपीरियंस लेकर फिर जाओ, तो मतलब निकलेगा उसका. 2 myths difficult to move from Deloitte USIs. 2 myths difficult to move from. ये हर प्रोफाइल के लिए, किसी भी प्रोफाइल में जाओगे थोड़ा टाइम बाद आप उसी प्रोफाइल से के अराउंड आपको जॉब्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्योंकि आपको पैकेज अच्छा मिलेगा तो आप खुद भी निकलना की कोशिश नहीं करोगे, फिर आप भी ये चाहोगे कि उससे रिलेटेड प्रोफाइल में ही रहे. कनाडा सीपीए करने के लिए एट फर्स्ट कनाडा में कैसे एंट्री करें, स्टडी पर्पस, ये थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है. वहाँ के कैनेडियन वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड ऑल. आई नो फ्यू पीपल, ठीक है, तो आई कैन जस्ट कनेक्ट यू विद देम, ठीक है, अगर किसी को ऐसा कुछ क्वेरी है तो. इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोर्स, देखो कोर्सेज एज सच there are a lot of courses these days, okay. But I could not recall as such कि ये particular is very good one, okay. Skill क्या build करनी है that I can tell you, कि valuations again, various valuation methodologies that you should study. Suggestions for Canadian CPA, okay. ये हमने बात कर ली है. Sir, we are short of time, क्या I can tell that, all right. Should we start? Okay, so basically we need to now quickly take the questions. Yes, you said initially Deloitte, USI or PwC, SDC. देखो both are same. Deloitte USI और PwC SDC both are same, right? कुछ भी अंतर नहीं है उसमें. How off campus opportunity are available for PSU? PSU में difficult है off campus opportunities. Taxation in Big Four available रहता है, fewer opportunities. ठीक है. शुड वी टारगेट कैट 2023? कैट तो इस साल ही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बेस्ट मिल जाएगा लाइक समथिंग लाइक IIM तो यस, अदरवाइज 23. और वैसे भी 22 में दोगे, एडमिशन 23 में मिलेगा, तो वैसे भी आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, तो दे दो, मतलब इसी साल दे दो, नवंबर वाला. डिफरेंस बिटवीन, देखो बताया मैंने आपको कि SDC इज अ सपोर्ट डिपार्टमेंट, राइट, एंड दिस इज अ प्राइमरी डिपार्टमेंट, इंडियन डिपार्टमेंट जो है. ओके, सो सी नाउ एक्चुअली there are definitely questions. So we'll take last 2 questions. How to select cities in placement? देखो ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके आर्टिकलशिप और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर, ठीक है. तो अगेन ये थोड़ा 1-to-1 क्वेश्चन है. इफ वी कॉम्प्रोमाइज विद आवर वर्क प्रोफाइल इन द स्टार्ट, इज इट पॉसिबल टू एंटर इन योर इंटरेस्टेड प्रोफाइल? लेटर ऑन डिफिकल्ट रहता है, देखो मैंने बताया. Would be better if I want to go for UPSC, whether quitting a job or one year better option, should I continue with job? जॉब के साथ करो, जॉब के साथ करना ज्यादा बेटर है, उसमें भी आपको एडवांटेज रहेगा. उसके जो इंटरव्यूज होते हैं यूपीएससी के, उसमें भी आपको एडवांटेज रहेगा उसका, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज का हमेशा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है. जॉब से ब्रेक मत लो, गो फॉर जॉब्स. ये दिस इज माय पर्सनल सजेशन, बट यस इसमें आप और लोगों के भी ले सकते हो सजेशन, क्योंकि मैंने वो एग्जाम्स नहीं दिए तो उसके कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं पता है, राइट. तो इसलिए और लोगों से उसका सजेशन लो आप, ठीक है. इज मोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन बैंगलोर इंस्टेड ऑफ दिल्ली एंड गुड़गांव? ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन भी कि कहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा आ रही है, ठीक है. सो यस, दिल्ली में लास्ट टाइम की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा कंपनीज थी रिलेटेड टू बैंगलोर. Before article जब 3 attend then which city should we? Again just connect me on LinkedIn, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और भी, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी उसमें. Right, so it's a fantastic discussion with all of you. Again, yes, this discussion can go on and on for hours.
But and I am sorry that I could not take some questions because there are few questions which we could not took in between. And so those queries which I could not answer, yes, you can certainly get in touch. You have my direct number also, and you have my LinkedIn profile. So it's a fantastic discussion with all of you, and I wish all the best to everyone for their fantastic results. Do well, and whenever you have any queries related to campus and all, we do conduct sessions for around 4 weeks, and those sessions are comprehensive sessions. We cover each and everything related to technical HR, GDs, and mock interviews. So basically everything which is required to get your placements. And those sessions would start immediately after exams, and it goes before your campus, and also till you get your jobs, till you get your placements. So it will be a comprehensive program for close to 3 or 4 weeks, depending on कि कब आपके campus lineup होते हैं उसके accordingly. So it is again a nice discussion. Okay, on Sunday, everyone, you're taken out 2 hours. It's difficult to take out time on weekends, but since you're taken out again, thank you very much, and thank you HR Lab for inviting me. Thank you so much, sir, for your valuable time on behalf of HR Lab. And I hope everyone liked the session. And like sir said, that it's important to utilize this time. So please have focus before the results are out. Thank you so much, sir, and thank you all the participants. Thank you. Bye bye. Thanks.